بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. ہوپفلی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, موسم بھی انجوائے کر رہے ہوں گے اور سردی کے جو پکوان ہیں وہ بھی انجوائے کرو گے. ظاہر صبح سویرے ناشتے کی ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آ گیا, لیکن اپنے اس شو سے, اس پلیٹ فارم سے میں اپیل کرنا چاہوں گی, خاص طور پہ جو اسکول انتظامیہ ہے اور اسپیشلی جو اسکول پرائیویٹ اور سرکاری ہیں دونوں سے, کہ ملک کے مختلف علاقوں میں, اگر ہم خاص طور پہ ناردرن ایریاز کی بات کریں, پنجاب کی بات کریں, کہ اپنے کے پی کی بات کریں, اسی طریقے سے ہم بات کریں بلوچستان کی, ایون کہ سندھ میں اور اندرون سندھ کی بھی ہم بات کریں, تو جب سردی کی شدت بڑھ جاتی ہے تو والدین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو اچھے سے پیک کر کے یعنی اسکول بھیجے, کیونکہ بچوں نے صبح سویرے بیٹھنا ہوتا ہے. کوئی وین کے ذریعے جاتا ہے, کوئی اپنے واک کر کے جاتا ہے پیرنٹس کے ساتھ, کوئی ان کے ساتھ کسی گاڑی میں جاتا ہے. لیکن کیا کرتے ہیں, سویٹر جو اسکول کی طرف سے ہوتا ہے اس پر وہ جیکٹ پہنا دیتے ہیں, سم ٹائمز کیپ پہنا دیتے ہیں, سم ٹائمز ان کو مفلر بھی پہنا دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ اسکول میں انٹر ہوتے ہیں, اسکول کی مینجمنٹ الرٹ ہو جاتی ہے, اور جب مینجمنٹ الرٹ ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا یونیفارم کدھر ہے, جو سویٹر ہم نے اسائن کیا ہوا ہے وہ کدھر ہے, تو باقی جو آپ نے پہنا ہوا ہے وہ اتار دیجئے, اور آپ اس سردی میں, اس ٹھٹرتی سردی میں بچہ جو ہے وہ سویٹر پہنے ہوئے, جو اسکول کی طرف سے بہت ہی کہتے ہیں نا پتلا باریک سا سویٹر ہوتا ہے, اس میں وہ بچہ صبح کی ٹھنڈ جو ہے وہ گزارتا ہے. ایک تو آپ کو بچوں کو یہ محسوس کرانا چاہیے کہ اگر سردی زیادہ ہے تو آپ یو آر الاؤڈ ٹو ویئر اینی تھنگ یو وانٹ. ہاں, آپ پیرنٹس سے اس کا ذکر ضرور کریں, لیکن بچوں کو اس پر پنش کرنا, بچوں کو سزائیں دینا یا بچے کو الاؤ نہیں کرنا, یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. سو اس موسم میں بچوں کے ساتھ بالکل ایسا نہ کریں. یہ ایک تو تھوڑی سی کہتے ہیں نا, آپ بچوں کو سکھاتے ہیں رحم دلی اپنائیں, ایمپتھی سیکھیں, تو آپ بھی خود کچھ اس کا مظاہرہ کریں. اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ مزاج ہوتا ہے, کچھ بچے جو ہیں وہ جلدی بیمار پڑ جاتے ہیں, ان کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے, تو ان چیزوں کا ذرا خیال رکھیں تاکہ بچے جو ہیں اور والدین جو ہیں وہ اس سردی میں ان مسائل کا شکار نہ رہیں. چلیں جی, تو یہ ایک میرا میسج تھا, کیونکہ ہم نے بھی بچپن میں یہی حالات دیکھے اور میں سمجھتی تھی کہ اب ہمیں بڑا ٹائم ہو گیا اسکول گئے ہوئے, تو اب شاید بڑی چینج آ گئی ہوگی, کچھ اپڈیٹڈ ہو گئے ہوں گے اسکول والے, لیکن ابھی بھی ایسی شکایتیں آتی ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے. چلیں جی, ذرا بات کرتے ہیں ویدر کی ہی کر رہے ہیں, تو پھر ذرا آغاز کر لیتے ہیں کہ کہاں کہاں پر کتنی سردی ہے اور درجہ حرارت جو ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. تو اگر سردی کی بات کریں تو سب سے پہلے بات کریں گے بالائی علاقوں کی, جہاں بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے, اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسکردو میں درجہ حرارت سوچیں -7 تک گر گیا ہے, جبکہ گلگت اور استور میں -6 ڈگری, اسلام آباد میں 1 ہے. اچھا, اسلام آباد کا کافی کنسسٹنٹ جا رہا ہے, پچھلے دنوں ہم یہی سن رہے تھے, آلموسٹ 1 جا رہا ہے. پشاور 2, لاہور 4 ڈگری, اور کراچی کی بات کریں تو یہاں جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو سردی زیادہ لگنے لگتی ہے. جب ہوائیں رک جاتی ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے اچھا ویدر تو بس ٹھیک ہے, آج زیادہ سردی نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئٹہ کی جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ کراچی پہنچتی ہیں, لیکن الصبح کراچی میں جو درجہ حرارت ہے وہ 10 ڈگری تک گیا, یعنی کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں سنگل ڈیجٹ میں بھی چلا جائے. تو یہ کراچی والوں کے لیے ایک طریقے سے خبر ہے. کوئٹہ کی میں نے اس سے پہلے بات کی, کوئٹہ میں -2 ہے درجہ حرارت, اور کیلات میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ سردی میں بھی لوگ جو ہیں کوششیں کرتے ہیں, خاص طور پہ اب تھوڑے دنوں بعد بچوں کی بھی اسکول کی چھٹیاں آ جائیں گی, تو چھٹی کو ذرا انجوائے کریں, اور اس کے لیے لوگ بڑی پلاننگ بھی کرتے ہیں, اور سردی میں ان مقامات کا رخ کرتے ہیں, خاص طور پہ ایسے شہروں سے جیسے کراچی والے ہیں جنہوں نے کبھی اپنے شہر میں برف باری نہیں دیکھی, تو وہ ان علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر انہیں سنو فال یا برف ملے. تو سوات کی بات کر لیتے ہیں, یہاں پر وادی سوات تو ظاہر حسین ہے, چاہے ویدر کیسا بھی ہو, یہاں کی جو وادی ہے وہ حسین نظارے پیش کرتی ہے. مالم جبہ میں مشینی برف باری سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی خاص طور پہ حسن نکھر گیا, مشینی ان دا سینس اس قسم کی یہاں پر برف باری ہوئی ہے. اور سخت سردی میں جی کھلاڑیوں کی آئس اسکیٹنگ کے مقابلے بھی ہو رہے ہیں, تو سیاح اس سے کافی محظوظ ہو رہے ہیں, اور یقیناً یہ بڑا زبردست ان کے لیے ایک اسپورٹنگ ایونٹ اور ایڈونچر ہوتا ہوگا. تو شہزاد عالم اس حوالے سے ہمیں مزید بتا رہے ہیں, آئیے دیکھیں. کی حسین وادی ملم جبہ میں پہلی بار مصنوعی برف باری سے وادی کا حسن دوبالا ہو گیا ہے. سیاح برفیلی وادی اور قدرتی حسن سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. یہاں پہ بہت انجوائے کیا ہے, سنو فال بہت اچھی, ہر چیز چیئر لفٹ لی ہے وہ بہت اچھا تھا, تو میں سب کو انوائٹ کروں گی, آپ لازمی آئے. لاہور سے ہوں, وہاں سے آئی ہوں مالم جبہ انجوائے کرنے, اور میں چیئر لفٹ میں بیٹھی تھی, بہت ڈر لگ رہا تھا
मज़ा भी आया था। वादी मलम जब्बा में मसनूई बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता इंजिमात से नीचे गिरकर पानी जम गया है, जिस पर खिलाड़ी आइस स्केटिंग के करतब दिखा रहे हैं। पानी फ्रीज हो के माइनस टेम्परेचर पे उससे आइस बनते हैं, उसके ऊपर फिर ये गेम होते हैं। और ये इतना मुश्किल गेम नहीं है, सीखने के लिए लिहाज से ये बहुत आसान है। ये अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी हमारी जो मशीन है पिस्टन बुली से हम कहते हैं, ये इस स्लोप को तैयार करती है स्कीयर्स के लिए। सयाह आइस स्कीइंग जैसे दिलचस्प और पुरखतर खेल को भी एंजॉय करने के साथ साथ कुदरती मनाजिर से भी मजे लेने में मसरूफ है। कैमरामैन कामरान कामी के साथ शहजाद आलम, एयर वाई न्यूज, मलम जब्बा, स्वात। चलें तो जो लोग सयाह हैं, जो घूमने फिरने गए हैं, सैरो तफरी के लिए गए हैं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं गए, जो अपने घरों में हैं, वो थोड़ा घर में चाय बना के, दिन में भी चाय का दिल कर रहा होता है, शाम में भी चाय का दिल चाह रहा होता है, खाने का ज़्यादा दिल कर रहा होता है, कोशिश ही होती है जी उनकी ज़रा पराठे बना लें, कुछ अच्छा सा जो है वो हलवा बना लें, लेकिन ये कैसे बने, क्योंकि गैस जो है उसका प्रेशर इतना कम है। ये एक बड़ा मसला यहाँ पर हुआ है। कल मैं देख रही थी कराची में इतना ट्रैफिक जैम था, कहीं पर पानी नहीं आ रहा। सो ये जब मसाइल हैं तो लोग घरों में भी किस तरह एंजॉय करें। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई, एलपीजी की कीमत में भी इजाफा हो गया है, और ये मनमाना इजाफा हुआ है। एलपीजी की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया है, जिसके बाद फ़ी किलो एलपीजी की कीमत अब हो गई है 290 रुपये। इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और कराची में मुख्तलिफ़ इलाकों में रेट्स मुख्तलिफ हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है जी, कराची में 320 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। अब ये कीमत जो है एलपीजी की सरकारी कीमत से 36 रुपये महंगी फ़रोख्त हो रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है और इन पर कोई नज़र क्यों नहीं रखता, ये हमारे प्लेटफॉर्म से हमेशा सवाल हम उठाते हैं, क्योंकि ओगरा ने एलपीजी की सरकारी कीमत 254 रुपये किलो मुकर्रर कर रखी है। तो ये जो सूरत हाल है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गैस का बहरान ऑलरेडी है, जो मैंने पहले भी जिक्र किया। अब लोग क्या करें, इस सूरत हाल में लोग क्या करें? महंगी गैस जो है, गैस सिलेंडर में गैस भरवाएं, या फिर लोग जो है बैठ के इंतज़ार करें, होटल से खाना खाएं, वो भी ख़र्चा है, महंगा पड़ता है। और रोज़ाना आप बाहर का खाना अच्छा भी नहीं है आपकी सेहत के लिए, ना ही आपकी जेब जो है उसे अफोर्ड कर सकती है। तो अब सुई सदन गैस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग और कम प्रेशर से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और दिन में सिर्फ चंद घंटे, एक तो वो टाइम तो है ही फिक्स्ड, 10 बजे गैस चली जाएगी, रात को सुबह 6 बजे आएगी, लेकिन दिन में गैस का प्रेशर इतना कम होगा कि आप उस पर कुछ पका नहीं सकते हैं। चाय भी अगर आप बनाना चाहेंगे तो उसमें पाई, वो जो कहते हैं ना, चाय बना रहे हो या पाए बना रहे हो, लिटरली वो कैफियत होती है जिसका लोगों का सामना करना पड़ता है। तो चले जी, अब शहरी क्या करें इस महंगाई के दौर में भी। उन्होंने सोचा चलो हमारे बिजली के बिल कम आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो बाहर से खाना पड़ रहा है गैस की लोड शेडिंग की वजह से। अंजू वहाब हमें डिटेल बताएंगे। अंजू बताइएगा, एक तो ये कि शहरी कितना परेशान है और क्या सूरत हाल है मज़ीद। गैस की कमी का शिकार तो कराची के शहरी सारा साल ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो चूल्हों में से गैस गायब होना शुरू हो जाती है। गैस आती है तो अचानक गायब हो जाती है। रात 10 बजे तो गैस पूरे कराची में बंद कर दी जाती है। लेकिन दिन में भी ये सूरत हाल होती है कि घरों में जब नाश्ता तैयार किया जाता है, दोपहर का खाना या रात का खाना तैयार किया जाता है, तो अचानक गैस गायब हो जाती है। और घरों में तो मुश्किलात होती हैं, लेकिन होटल मालिकान को भी मुश्किलात का सामना रहते हैं। इसका सद्देबाब उन्होंने ये निकाला, ऑल्टरनेट ये निकाला है कि वो फिर एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एलपीजी भी महंगी है सरकारी कीमत से, वो भी 30-40 रुपये फ़ी किलो ज़्यादा पर फ़रोख्त की जा रही है। तो ये सूरत हाल सार्फिन के लिए काफ़ी मुश्किल होती चली जा रही है। शहर में जो इस वक्त जो कराची और सिंध की डिमांड देखी जाए तो वो तकरीबन 1060 MMCFD है, जबकि सप्लाई तकरीबन 816 MMCFD हो रही है, और जो शॉर्टफॉल आ रहा है 244 MMCFD का है। कराची शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 400 से 420 MMCFD गैस की ज़रूरत है, और इसमें भी 100-150 MMCFD गैस की कमी रहती है, जिसको गैस प्रोफाइलिंग कहते हैं SHGC वाले। लेकिन अगर सूरत हाल देखी जाए तो लोड शेडिंग की जाती है और कई इलाकों में गैस बंद कर दी जाती है, या उसका प्रेशर इतना कम कर दिया जाता है कि वो ना होने के बराबर होता है। तो ये गैस की कमी तो सुई गैस की तरफ से वो अपना प्रेशर कम कर देती हैं या बंद कर देते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो ये सूरत हाल शहरियों के लिए काफ़ी परेशान कुन है कि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, गैस मिलती है या नहीं मिलती है। अब ये SHGC का ही बताना होगा कि सर्दियों में सूरत हाल क्या रहेगी, कोई टाइम टेबल जारी करेंगे या इसी तरह गैस का प्रेशर कम होता रहेगा और मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद होती रहेगी। जी, लेकिन भाई सवाल यह है कि क्यों गैस का प्रेशर कम है, ख़ास तौर पे उन औकात में जब गैस आपने अलाउ किया हुआ है पब्लिक को, अपने मुल्क के शहरियों के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लोग इसका मुतबादिल क्या ढूंढते हैं, वो जाते हैं गैस सिलेंडर की तरफ।
گیس سلنڈر میں کیا ہوتے ہیں اس میں پیسے بچانے کی بھی لوگ کوشش کرتے ہیں, اور وہ جو کہتے ہیں نا ناقص مٹیریل کا بنا ہوا سلنڈر ہوتا ہے جو آپ کی کہتے ہیں نا جو کباڑیوں سے لیا جاتا ہے پرانے علاقوں سے سستا خریدنے کے چکر میں 2-3 ہزار روپے اس پہ بچ جائیں, اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو وہ آپ کی زندگی کے لیے بہت خطرناک ہے. بیشتر ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جب گیس سلنڈر کے پھٹنے سے اس کی لیکیج کی وجہ سے لوگوں کو موت کا اور حادثات کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اپنی جانوں کا خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. تھوڑے پیسے زیادہ اگر آپ کو دینے پڑ رہے ہیں لیکن آپ یہ جو خطرناک ترین ایشو ہے اس سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. سو دیکھ بھال کے گیس سلنڈر خریدیں, یہ ایک تھوڑا سا مشورہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ کے لیے ہے. دوسرا یہ کہ ذرا سن لیتے ہیں کہ جی لاہور میں کیا صورتحال ہے, کیونکہ جب لاہور میں سردی بڑھتی ہے تو وہاں کی سردی بڑی شدید ہے. وہاں پر بھی گیس بند, یعنی پورے ملک کا ماشاءاللہ یہ مسئلہ ہے کہ گیس جو ہے وہ کم آ رہی ہے, گیس کی بندش کا سامنا وہاں بھی ہے. اب خواتین کیا کریں, صبح سویرے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, گھر کے مرد کھانا کھائیں ناشتہ کریں گے, اس کے بعد آفس جائیں گے, بچے بھی ناشتہ کریں گے, اسکول جائیں گے. تو ایسے میں کیا کر رہی ہیں خواتین, کس طرح مینیج کر رہی ہیں صورتحال کو؟ سدرا غیاث ہمیں اس بارے میں بتا رہی ہیں. جی بالکل, گیس کا بحران جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. جوں موسم میں تبدیلی آ رہی ہے, درجہ حرارت کم ہو رہا ہے اور گیس کی بندش جو ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے. گھریلو خواتین جو ہیں وہ گیس کی بندش کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں. یہ ہمیشہ سردیوں میں نہیں آتی, بہت کم ہوتی ہے. بچے کہتے ہیں ہمیں سموسے رول بنا کے دو, شامی ٹکیاں ماما بنا کے دو, اور کیسے بنا کے دیں جب گیس ہی نہیں آئے گی. بازار سے آئے گا, بچے بیمار ہو گئے اس موسم میں, پھر اور مشکل ماں باپ کے لیے ہوتی ہے. تو یہ درخواست ہے کہ گیس کا کچھ کریں, یہ گھر میں گیس آتی ہی نہیں سردیوں میں. خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. بچوں کو صبح اسکول بھیجنا ہوتا ہے, دفاتر میں لوگوں نے جانا ہوتا ہے, لیکن گیس نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ ان کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بل بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گیس کے سلنڈر جو ہیں وہ ان کو ماہانہ الگ سے بھروانے پڑتے ہیں یا پھر ریڈی میڈ کھانا منگوانا پڑتا ہے. تو شہریوں کا گورنمنٹ سے یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ گیس کی بندش کو ختم کرے تاکہ ان کو ریلیف مل سکے. جی اچھا, بچوں سے تھوڑی گزارش ہے, اتنی فرمائشیں نہ کریں. جب گیس نہیں ہے گھر میں, رول بنوانے ہیں, سموسے بنوانے ہیں, ٹکیاں بنوانی ہیں, سمپل سے ناشتہ کر لیں جو افورڈ کیا جا سکتا ہے. انڈا اور پراٹھا میکسیمم یہ کھا لیں آپ. کیا مطلب آپ صبح سویرے رول کھا کے کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ چلے جی, خیر ماؤں کے لیے بڑی سخت مشکلات ہوئی ہوئی ہے. قصور کا ذکر کر لیتے ہیں. وہاں پر بھی ملک کے دیگر حصوں کی طرح گیس کی بندش ہے اور یہاں کے شہری بھی کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ تکریم علی ہمارے نمائندے جو ہمیں وہاں سے رپورٹ کریں گے کہ وہاں کے شہری کیا درخواست کر رہے ہیں. جی بالکل, جیسے جیسے سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ویسے گیس کے بحران بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف گھریلو صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بلکہ ہوٹلز اور تندور والوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو گیس کے اس وقت لوڈ شیڈنگ 16 گھنٹے تک پہنچ چکی ہے, جس کی وجہ سے گیس کے بحران کی وجہ سے جو آفس میں جانے والے افراد ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے توانائی کے متبادل ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں. لکڑی پہ لوگ چولہا جلا رہے ہیں جبکہ لکڑی کے ریٹ بھی اتنے زیادہ ہیں. صارفین کا کہنا ہے کہ جو گیس کی جو قیمت تھی, پہلے بجلی کا بل 500 آتا تھا, اس وقت 2000 کے قریب بجلی گیس کا بل آ رہا ہے. حکومت کو چاہیے کہ نہ صرف گیس کی قیمتوں میں کمی کرے بلکہ گیس کی فراہمی کو بھی یقینی بنائے تاکہ عام آدمی کا چولہا جل سکے. جی تو دیکھ لیا آپ نے کہ جب گیس نہیں آتی ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو لوگوں کو پھر باہر سے ایک تو کھانا خریدنا پڑتا ہے, آپ کی جیب پہ ایکسٹرا برڈن آتا ہے. دوسرے کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں گاؤں دیہات میں لکڑیاں بھی جلاتے ہیں. اب جیسے لاہور کی بات کر لیں, پنجاب کی, تو وہاں اسموگ بھی ہے. اس طرح آپ کو الاؤ بھی نہیں ہے کہ لکڑیاں جلائیں. لکڑیاں مہنگی بھی ہیں, کریں تو کیا کریں, لوگوں کو اپنی زندگی گزارنی ہے, اپنے روزمرہ جو ہے وہ مینیج کرنے. تو خدا ذرا یہ ایشو دیکھ لیا کریں کہ گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے, ایک تو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ ٹائم الگ ہے, لیکن اس کے علاوہ جو گیس پریشر کم ہے اس کو مینیج کر سکتی ہے حکومت, تو ضرور مینیج کرے. یہ پورے ملک سے ہم نے ایک سینس لینے کی کوشش کی, مختلف علاقوں سے, مختلف صوبوں سے, کہ کیا لوگ سوچ رہے ہیں, یا صرف یہیں کا ایشو ہے یا پورے ملک کا ایشو ہے. تو اس کو جی کافی دیکھنے کی ضرورت ہے. کافی زیادہ مشکلات لوگوں کو جھیلنی پڑ رہی ہیں. اچھا جی, اس وقت ایک خبر ہے اور وہ کرک سے ہے اور بڑی ہی ہولناک قسم کی اس کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں. مین سٹی میں نشے کے عادی شخص نے
अपने ही घर के 3 अफराद को कत्ल कर दिया है और 2 जख्मी हैं। अब जो कत्ल होने वालों में इनका भाई है, भाभी और बच्ची है। तो नवाज खटक हमारे नुमाइंदे, उनसे जान लेते हैं। नवाज खटक, बताइएगा, 3 अफराद को तो कत्ल कर दिया, 2 जख्मी हैं, ये तमाम के तमाम घर वाले हैं? जी बिल्कुल। और करक में फैजान नामी एक नक्शी शख्स ने मलंग बाबा कॉलोनी में अलग सुबह 5:30-6 बजे के करीब अपने ही घर में अपने वालिद, भाई, भाभी समेत 4 बच्चों को ज़बह कर दिया है, जिसमें उनके वालिद, भाई लुकमान और एक छोटी बच्ची कत्ल हो चुकी है। मुलजिम भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मुलजिम को पुलिस ने अपने तहवील में ले लिया है, जबकि जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए पेशावर मुंतकिल किया गया है। जी ठीक है नवाज खटक, बहुत शुक्रिया। और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है करक में। अच्छा जी, तो कहते हैं ना, हम अक्सर और बेशतर आपको बता रहे होते हैं मुल्क में महंगाई की इस वक्त शरह क्या है, इस वक्त लोगों के जो हालात ज़िंदगी हैं वो क्या है, बेरोज़गारी कहाँ पर पहुँच गई है। सो तनख्वाहों में उस तरह इजाफा नहीं हो रहा जिस तरह महंगाई बढ़ी। क़ुव्वत ख़रीद लोगों की जो है वो बड़ी ज़्यादा डैमेज हुई है। लेकिन हम ये देख रहे हैं जो हमारे हुक्मरान हैं, जिन्होंने असेंबलियों में बैठ के कानून साजी करने हैं, यही फैसले करने हैं, और फिर बजट जब आता है तो हमें बताया जाता है देखिए जी, हो सकता है पेंशनर्स की जो पेंशन है उसमें कमी कर दी जाए, हो सकता है इस बार जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं इतनी ज़्यादा ना बढ़ा सकें जो हमने पिछले अरसे में की थी, क्योंकि जो इस वक्त बजट है वो अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन बजट ये ज़रूर अलाउ कर रहा है कि जो हमारे पंजाब असेंबली में बैठे हुक्मरान हैं उनकी तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ है, एक इजाफा होता है जी 100%, एक होता है 200%। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको इजाफा बताने जा रही हूँ, एक तो ये जो बिल है ये कसरत राय से मंजूर हुआ है, यानी कि जो पंजाब असेंबली के अरकान हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर हुआ। अब सुन लीजिए, पहले अरकान की तनख्वाह थी 76,000 रुपये, जबकि सूबाई वज़रा की तनख्वाहें 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 9,60,000 रुपये कर दी गई हैं। और जो नुमाइंदे हैं अवामी, यानी कि जो असेंबली में बैठे हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। 4 लाख रुपए करने का ये जो बिल है ये कसरत राय से मंजूर हो गया है। सो दैट्स गुड। अगर आपकी ज़िंदगी में आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़रूरतें 4 लाख से पूरी होंगी, तो फिर आवाम के लिए भी इसी तरह का अगर आप ख्याल रखें और उनके लिए भी कुछ ऐसे बिल लेकर आएँ, तो फिर आवाम और आपके अंदर जो एक डिस्पैरिटी है ना वो कम हो जाएगी। फिर लोगों को लगेगा कि जी आप भी जस्टिफाई करते हैं इतनी तनख्वाह बढ़वाना, क्योंकि हमारे भी यही हालात हैं जिसकी वजह से आपने अपनी तनख्वाह बढ़वाई है। अच्छा जी, बिल मंजूरी के बाद अब स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह 1,25,000 रुपये से बढ़ाकर 9,50,000, जबकि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 रुपये हो गई है। सिर्फ अरकान असेंबली की ही तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, बल्कि जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, ज़ाहिर है फिर उनका भी हक बनता है, उनकी भी 83,000 से बढ़ाकर 4,51,000। स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह भी बढ़ा दी गई। तो उल्फत मुगल हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं। उल्फत बड़े तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, अपने ही लिए उन्होंने कानून साजी करके अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। तो ये बताइएगा कि अपोजिशन जिसका ये रोल होता है कि वो हुकूमत के फैसलों पर ट्रेजरी बेंचेस पर तनकीद करे, वो खुश हैं, वो तो खुश होंगे, उनकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं आया। जी सदफ, इस बिल पर अपोजिशन ऐसी थी जैसे शर्मीली दुल्हन निकाह के वक्त ज़्यादा बोलती नहीं है, बस अंदर से मुस्कुराती रहती है। तो अपोजिशन इस बिल पर अंदर से मुस्कुराती रही और पंजाब हुकूमत ने अरकान असम्बली के लिए अपने ख़जानों के दरवाजे खोल दिए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने किसी दरिया दिल और सखी बादशाह की तरह अपने जो अरकान असम्बली हैं उनकी गोदें भर दी हैं, उनकी झोलियाँ भर दी हैं। और जो अरकान पहले 76,000 रुपये जो बेसिक सैलरी है, TADA से अलग हैं, जिनकी 76,000 रुपये माहाना सैलरी थी, उनकी एकदम बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है। सूबाई वज़रा जो पहले 1 लाख से तनख्वाह लेते थे, अब उनकी तनख्वाह 9,60,000 रुपए कर दी गई है। स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह पहले 1,20,000 थी, जो अब 9,50,000 रुपए कर दी गई है। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 थी, जो 7,75,000 कर दी गई है। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह 83,000 रुपए थी माहाना, जो कि अब बढ़ाकर 4,51,000 रुपए कर दी गई है। मुआविन खसूसी और एडवाइज़र को भी नवाजा गया है। अच्छा। और बड़ा अच्छा खासा नवाजा गया है, जिनकी तनख्वाह पहले 1 लाख रुपए थी सॉरी, अब उनकी तनख्वाह 6,65,000 कर दी गई। इसी तरह एडवाइज़र की भी तनख्वाह कर दी गई है। अब सोचने वाली बात यह कि जो लोग वोट देते हैं
وہ گزارا کریں گے 37,000 روپے مہینے میں. اور جو لوگ ووٹ لیتے ہیں ان کی تنخواہ 4 لاکھ روپے بڑھا دی گئی ہے. ظاہر ہے اس سے ارکان اسمبلی تو خوش ہیں, اور کچھ تھوڑی بہت ناراضگیاں چل رہی تھی کہ شاید ان کے کام نہیں ہو رہے, کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو رہی. خدمت بھی کرنی ہے, دوسرے یہ انہوں نے قانون سازی بھی کرنی ہے, تیسرے یہ کہ ان کو پرکس اینڈ پریویلیجز بھی ملتے ہیں, ٹی اے ڈی اے بھی ملتا ہے, تو یہ بھی انکلوڈڈ ہے اس میں. صدف اس میں ان کا ٹی اے ڈی اے الگ ہے. جو ایک بندہ پنجاب اسمبلی کا ممبر ہے اور وہ بہاولپور سے آتا ہے, ڈیرہ غازی خان سے آتا ہے, سرگودا سے آتا ہے, خوشاب سے آتا ہے, تو اسی ڈسٹینس کے حساب سے اس کو فیول چارجز بھی جاتے ہیں. جو ایک دن اجلاس میں وہ شرکت کرتا ہے, وہ بیٹھتا ہے, مہربانی کرتا ہے, اس کے پیسے بھی انہیں دیے جاتے ہیں. حالانکہ زیادہ تر وقت یہ ارکان ایوان میں بیٹھنے کے بجائے لابیز میں گپ شپ کرتے ہیں. جب کورم کی نشاندہی ہوتی ہے تو اٹھ کے آ جاتے ہیں. ہم تو یہ سال سے دیکھ رہے ہیں. وہ دلچسپی نہیں ہوتی ارکان کی, وہ بزنس نہیں ہوتا. اکا دکا ارکان ایسے ہوتے ہیں جن کا پبلک انٹرسٹ کا بزنس ہوتا ہے, باقی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ سارے لینڈ لارڈ لوگ ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں. یہ کوئی غریب نہیں ہے جو پنجاب اسمبلی کے ارکان آتے ہیں اور اربوں روپے کی, کروڑوں روپے کی گاڑیوں پہ یہ سفر کر کے غریب جو ننگے پاؤں چلتا ہے, ننگے بدن چلتا ہے, اس کے حقوق کا تحفظ کے لیے جہاں پنجاب اسمبلی آتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے. ہمارے ناظرین کے لیے الفت, یہاں پر ایک آدمی کی زیادہ سے زیادہ کیا تنخواہ مقرر ہے گورنمنٹ کی جانب سے, یہ بھی بتا دیں. اور ظاہر ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی چل گیا, ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں وہ 4.5 لاکھ کے قریب تنخواہ اٹھائیں گے. تو ذرا یاد دلا دیں 37,000 ہے, پنجاب میں کتنی ہے؟ صدف 37,000 حکومت نے یہ اعلان کیا ہوا ہے. لیکن جو خاص کر میں سیکیورٹی گارڈز اور چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ 37,000 بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. ان کو 18 سے 20,000 روپے 22,000 روپے دے دیا جاتا ہے. 18 گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے, ان کا کوئی ویکلی آف بھی نہیں ہوتا. ہم نے متعدد بار جو سینئر منسٹر نے یا انفارمیشن منسٹر نے پریس کانفرنس کرتے ہیں تو یہ عوامی ایشوز کے سوالات ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیبر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جا کر لوگ شکایت درج کرائیں. 37,000 روپے پر عمل درآمد کچھ اداروں میں ہو رہا ہے, لیکن موسٹلی جو ادارے ہیں وہاں پر 37,000 میں بھی عمل نہیں ہو رہا. عوام نے 37,000 مہینے میں گزارا کرنا ہے. یہ غریب لوگ ہیں, ان کا 4 لاکھ میں بھی بڑی مشکل سے گزارا ہوگا میرے خیال میں. چلیں, تھینک یو سو مچ. اور جیسے کہ آپ نے بتایا, اپوزیشن جو کہ کوشش یہ کرتی ہے کہ عوام کی نمائندہ آواز بنے. اگر گورنمنٹ جو ہے وہ فیصلہ عوام مخالف لے رہی ہے تو وہ خود بھی اس میں شامل ہے. بلکہ بتا رہے تھے جی کہ انہوں نے بھی بڑی اس پر خوشی راضی ہو گئے. ظاہر ہے ان کی تنخواہیں بھی بڑھی, لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اتنی تنخواہ کی گزارا کرنے کے لیے تو پلیز عوام کے لیے بھی سوچیں, ان کے لیے بھی کوئی ایسا بل لائیں اور اسے بھی کثرت رائے سے منظور کر لیں, تو بڑی آپ کی مہربانی ہوگی. اس پر تو میں بریک ہی لیتی ہوں, اور بریک کے بعد واپس آتی ہوں. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس سے پہلے کہ سیگمنٹ کی طرف آگے بڑھتے ہیں, خبر ہے جو شامل کر لیتے ہیں, اور خبر ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 درخواست سے ضمانت پر سماعت ہوئی. بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ آج بھی نہ ہو سکا. تو فاروق اعجاز ہمارے ساتھ ہیں جو مزید ڈیٹیل بتائیں گے. جی فاروق. بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 درخواست ضمانت پر سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوتا نے کی ہے. بشرا بی بی کی حد تک دلائل مکمل ہو چکے تھے, لیکن آج بھی بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے وکیل خالد یوسف چودھری آج عدالت میں پیش ہوئے. بانی پی ٹی آئی کی جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے آج بھی حاضری نہیں لگائی جا سکی. عدالت نے جیل حکام کو ویڈیو لنک کے ذریعے دوبارہ حاضری لگوانے کے حوالے سے نوٹس جاری کر دیا ہے, جبکہ عدالت نے ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 7 جنوری تک ملتوی کر دی ہے. بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر بھی فیصلہ 7 جنوری تک مؤخر کر دیا گیا ہے. جی فاروق, بہت شکریہ آپ کا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں معیشت کی, اور معیشت میں جہاں پر ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج بڑا زبردست پرفارم کر رہی ہے, تو وہیں پر اب جو شرح سود ہے اسٹیٹ بینک کی جانب سے اس میں مزید کمی کر دی گئی ہے. سو اب جو کمی ہوئی ہے اس کے مطابق شرح سود 15 سے کم ہو کر 13% ہو گئی ہے, یعنی کہ اس میں 2% کمی کی گئی ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق ماہانہ مہنگائی کی شرح 4.9% پر آ گئی ہے, اور مرکزی بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر $12 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں. وزیر اعظم نے شرح سود کم ہونا خوشائن قرار دیا ہے, اور ظاہر ہے اس سے بہت کچھ امپیکٹ پڑے گا مارکیٹ پر, اور جو خاص طور پہ
ट्रेड है उस पर कहा पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा और उम्मीद है कि महंगाई की शरह में या महंगाई बढ़ने की जो शरह है उसमें मजीद कमी होगी। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर से जो बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियाँ हैं उसमें मुश्किलात नहीं आएंगी और शरह सूद में कमी से कर्ज़ में सूद की अदायगी भी अब 1,500 रुपये की इस पर बचत 1,500 अरब की इसमें बचत होगी। गवर्नर स्टेट बैंक ये भी कहते हैं कि 1.5 साल पहले जो गैर यकीनी की कैफियत थी उसमें कमी आई है और ये क्या ट्रेंड आगे चलेगा और इसको ज़ाहिर हम समझने की भी कोशिश करते हैं कि जब शरह सूद कम होती है तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। बात कर लेते हैं वज़ीर ख़जाना के मुशीर बराए इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स खुर्रम शहजाद इस वक्त हमारे साथ है। खुर्रम, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रा से बता दीजिएगा माशी इस्तेहकाम के लिए शरह सूद में कमी होना कितनी फ़ायदेमंद है और इस वक्त जो 2% कमी हुई है उससे क्या क्या इम्पैक्ट इमीडिएटली महसूस किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया सदफ। देखें ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है और पिछले कई महीनों से अगर आप देखें तो एक सिलसिला जारी है और इसकी एक बड़ी वजह जो है स्टेट बैंक की जो पॉलिसी स्टेट बैंक ने अडॉप्ट की है इसकी एक बड़ी वजह इन्फ्लेशन में कमी है और इन्फ्लेशन की अगर आप रफ्तार देखें तो वो काफ़ी कम हो गई है, 6.5 साल के लो पे आ गई है। तकरीबन कुछ 4.9% लास्ट नंबर जो आया है नवंबर का, उसकी बेसिस पे अगर आप एवरेज इन्फ्लेशन देखें तो 8 से भी 8 के अराउंड हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलिसी में जो पॉलिसी रेट में और जो इन्फ्लेशन में गैप था वो काफ़ी ज़्यादा था और मेरे ख्याल में स्टेट बैंक ने जो है वो बहुत प्रूडेंट अप्रोच भी अपनाई है। ये स्टेट बैंक का प्रेरोगेटिव है, उनका एम्बिट है और उन्होंने पिछले कोई 5 मरतबा जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी में कमी की है। तकरीबन 22% से रेट घटा के 12% किया है, 13% किया है। हालांकि अगर आप मार्केट रेट्स देखें जिसपे जो है वो लैंडिंग एंड बोरोइंग होती है वो रेट्स तो 12% तक आए हुए हैं। जो काइबार है वो बेंचमार्क रेट होता है तो वो तो ऑलरेडी काफी नीचे आ चुका है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा डिसीजन है और मार्केट ने इसको वेलकम किया है, स्टॉक मार्केट ने वेलकम किया है, बिजनेसेस ने इन जनरल इंडस्ट्रीज ने वेलकम किया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी बड़ी अच्छी इसमें सेविंग्स हैं जो कि इंशाल्लाह होंगी आने वाले दिनों में। तो मेरे ख्याल में ये ओवरऑल बहुत अच्छी डेवलपमेंट है इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से, इकोनॉमिक आउटलुक के हिसाब से पाकिस्तान के लिए। तो जब वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि गैर यकीनी की कैफियत से इस वक्त हम निकल आए माशी तौर पे, तो आगे आने वाले दिनों में क्या शरह सूद मज़ीद कम हो सकती है अगर देखा जाए यही ट्रेंड? देखिए ये तो स्टेट बैंक जो है वो देखेगा इस चीज़ को क्योंकि प्योरली उनका एरिया है ये और वो उनके यहाँ बड़ा आपको पता है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, फिर बोर्ड है और फिर ओवरऑल उनका पूरा एक तरीकाकार है कि किस तरह से महंगाई को आगे वो प्रोजेक्ट करते हैं, कैसे आगे महंगाई नीचे जानी है या ऊपर जानी है। ये तो उनकी बड़ी डिटेल स्टडी होती है। तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन का जो टारगेट है सदफ वो तकरीबन कोई 5 से 7% का जो है वो किया गया है और 5 से 7% मुझे लगता है अब अचीवेबल हो रहा है। अगले 6 महीने में भी इन्फ्लेशन जो है एवरेज इसके अराउंड आ सकती है। तो मेरे ख्याल में तो अगर इन्फ्लेशन नीचे रहती है तो शायद स्टेट बैंक उस हिसाब से डिसीजन ले। बट अगेन स्टेट बैंक का अपना एरिया है, स्टेट बैंक किस तरह से इसको देखता है मेरे ख्याल में वो बेहतर जो है वो अपनी आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में इसको इंडिकेट करेंगे। और इन लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा हमें दिखाई देगा क्योंकि इनिशियली इमीडिएटली तो वो इम्पैक्ट नहीं होता। कितना क्वार्टर लगेगा, कितना टाइम लगेगा? देखिए मेरे ख्याल में इसका एक जो ऑप्टिमिज्म होता है वो तो फौरन आता है कि जी आगे प्रॉस्पेक्ट्स बेहतर हो गए हैं, तो वो तो फौरन आ रहा है। आप देखें पिछले कई जो है वो महीनों से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे जाते हुए हालात बेहतर हो रहे हैं, इकॉनमी अपनी जगह आ रही है, दोबारा ट्रैक पे आ गई है, आपके रिजर्व्स बेहतर हो गए हैं, रुपया स्टेबल हो गया, एक डायरेक्शन नजर आ रही है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए हैं, अब नया जो कैपिटल है वो डिप्लॉय होगा, महंगाई में मजीद कमी मुतवक्के है। और आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, मिनिस्टर फाइनेंस ने स्पेशली अपने सुपरविजन में जो ईसीसी को ये हेड करते हैं, इन्होंने अपनी एक जो है टीम भी कमेटी भी बनाई है जिसके अंदर जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड प्राइसेस हैं बेसिक अशिया खुर्दनोश की वो क्या है और इन्फ्लेशन के नंबर्स क्या कह रहे हैं, उस पर कोई गैप आता है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट की साइड पे, फिस्कल साइड पे अपने जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इंटरवेंशन है कि सही तरीके से एक आम आदमी को इसके समरात मिले। और स्टेट बैंक ऑफ कोर्स इसको कंप्लीटली जो है ओवरसी करता है, स्टेट बैंक का पूरा एरिया है ये। और स्टेट बैंक हमने प्रूडेंट रहा भी है पॉलिसी में और आगे लगता है मुझे कि इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करने में बहुत अच्छा रोल प्ले मजीद करेगा इंशाल्लाह। खुर्रम एक चीज़ और बताइएगा, पिछले अगर मैं पीछे जाऊँ 8-10 साल 6 साल पहले की मैं बात करूँ
तो बड़ा ट्रेंड था, लोग बैंक के थ्रू जो है अफोर्डेबल था उनके लिए, यकमुश्त वो पैसे नहीं दे सकते थे, वो गाड़ी को लीज करवा देते थे और उस वक्त जब फिर मॉर्गेज ले लेते थे घर के लिए, लेकिन बाद में जब ये शरह सूद बढ़ती गई 22-23% पर पहुंच गई तो हमने इसमें एक डिक्लाइन देखा, लोगों की परचेजिंग पावर भी डिक्लाइन होना शुरू हो गई। अब क्या ये बेहतर होगी और हमारी ऑटो इंडस्ट्री को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है सारी सूरत हाल में। अब शरह सूद यहाँ पर पहुंची है 22 से 13 पर, आप समझते हैं एक बार फिर से इस तरफ रुझान बढ़ेगा लोगों का? जी बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया है। बिल्कुल, देखें जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं तो उससे फायदे भी बहुत होते हैं, लेकिन हमने देखें आपने बिल्कुल बात की गाड़ियों की, घरों की, ये सारी फाइनेंसिंग जो है वो फिर शुरू होती है, अफोर्डेबिलिटी में बेहतरी आती है। लेकिन मैं देखें इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि एक तो देखें ये साइड है कि अफोर्डेबिलिटी है या नहीं है फाइनेंसिंग की, दूसरी साइड पे देखें डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, नया कैपिटल मार्केट में आए और इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस उसको लेके अपने पुराने कर्जे जो है वो रीपे करें और नए कर्जे लेकर और उनको इन्वेस्ट करें ताकि इंडस्ट्री में की ग्रोथ में इजाफा हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, रोजगार आए, जिसकी वजह से फिर इसके सारे इफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स हैं ये कि जी वो फिर जब अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है तो फिर आप फाइनेंसिंग की तरफ भी जाते हैं, गाड़ी भी ले सकते हैं, घर भी ले सकते हैं। तो बेसिक चीज है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नीचे जाना जो कि जा रही है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने भी जो फिस्कल साइड है, यानी कि जो टैक्स हम इकट्ठा करते हैं और हम जो खर्चे करते हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा पोर्शन जो है कर्जों की अदायगियां हैं, उसमें जो है बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जब कर्जों की अदायगियों में कमी होती है या उसके रेट में कमी होती है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल फ्लोज बेहतर होना, इन्वेस्टमेंट होना ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है कि हमने दोबारा से इतना जो मैंने कहा ना, स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, बड़ा प्रूडेंटली आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने कट दिया है, अग्रेसिव नहीं हुआ है वो, क्योंकि हमने दोबारा से इंपोर्ट लेट की तरफ नहीं जाना कि हम इतना रेट नीचे कर दें कि अगर जो है इंपोर्ट्स जो है दोबारा खुल जाएं और फिर हमारी जो है सिर्फ ग्रोथ के लिए हम अचीव करने के लिए हम जो है अपने रिजर्व्स को जाया करें। तो ये स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है कि आराम से इन्होंने रेट कट किया है, अच्छा रेट कट किया है, इंडस्ट्री भी सपोर्ट कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट भी होना शुरू हो ताकि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं। अभी आप बताया जा रहा है कि जी 12 अरब डॉलर से जो आपके फॉरेन रिजर्व्स हैं वो तजावुज कर गए हैं, इंपोर्ट पे जिस तरह की पाबंदी है, आप समझते हैं कि ये मजीद आगे रहेगी कुछ सालों तक और इसमें इजाफा होगा फिर रेमिटेंसेस? मैं आपको क्लियर कर दूं ये चीज के इंपोर्ट पे कोई पाबंदी इस वक्त नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट पाबंदी नहीं है। स्टेट बैंक से आप पूछ सकते हैं इस पे, हम तो शायद इतना हमें नहीं है, लेकिन जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है कोई ऐसी पाबंदी नहीं है इंपोर्ट्स पे कि जी इंपोर्ट्स रुकी जाए। इंपोर्ट्स में आपको नंबर्स बताता हूँ, 5 महीने में इंपोर्ट्स में रफली 3% का इजाफा हुआ है अगर आप पीबीएस के नंबर्स देखें, और जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 13% का इजाफा हुआ है। सदफ ये अच्छी डेवलपमेंट है कि पहले ये होता था कि जितनी एक्सपोर्ट होती थी उसके अंदर इंपोर्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता था। आप इसको ब्लेसिंग कहें, डिसगाइज से जो भी कहें कि पिछले 2 साल जो टफ हमने के अंदर बिजनेसेस ने काफी ज्यादा जो है लोकल सोर्सिंग की तरफ भी ध्यान दिया है, जिसकी वजह से आप देखें एक्सपोर्ट सस्टेन कर रही हैं एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स जो है इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही। तो लोग ये समझ रहे हैं कि जी इस पर पाबंदी है, पाबंदी नहीं है। आज स्टेट बैंक आपको देखें जो प्रॉफिट जो यहाँ से निकाल के लेके जाती हैं बहुत सारी मल्टीनेशनल्स, पिछले साल जो है बहुत कम पैसा गया, उससे पिछले साल ये जो 24 क्लोज हुआ है 2.2 बिलियन डॉलर के करीब तकरीबन जो है प्रॉफिट रिपाट्रिएशन हुई है और आज भी ऑलरेडी हो रही है अच्छी खासी। तो इस वक्त जो कैपिटल फ्लोज पे जो इश्यूज थे वो खत्म है, इंपोर्ट्स पे कोई ऐसी कदम नहीं है सच। हाँ ये है कि करेंसी को जो है देख के जो है वो खरीदने के लिए दिया जाता है कि ये जेन्युइन डिमांड है या नहीं है, और यही होना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया में ये होता है। ये सारी चीजें बेहतर हुई हैं। बिल्कुल, और आपने सही फरमाया ज़ाहिर, और हमारा थोड़ा सा रिलायंस अपनी लोकल मार्केट पे, लोकल जो हमारे जो स्मॉल बिजनेस हैं या बिजनेस हैं उन पर ज़्यादा होने लगा है। थैंक यू सो मच, खुर्रम हमारे साथ थे, इस सूरत हाल बात कर रहे थे, और ये बड़ा ज़रूरी है ख़ास तौर पे जो कहते हैं ना स्मॉल बिजनेस जो शुरू करना चाहते हैं उन्हें कर्ज़ों की भी ज़रूरत होती है। जब बैंकों से कर्ज़ा लेते हैं, कम शरह सूद पर कर्जा मिलेगा, उनके लिए भी आसानी होगी, बिजनेस भी बूम करेगा और ऐसे लोग मज़ीद भी इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मईशत के कुछ इंडिकेटर्स हमें बता रहे होते हैं कि तरक्की जो है वो किस तरह की जा रही है, कैसे आगे बढ़ा जा रहा है। बांग्लादेश का मॉडल भी हमारे सामने है, उन्होंने इन्हीं छोटे छोटे इश्यूज़ को कहते हैं ना इनको सही करके दुरुस्त फैसले लेकर आज अपनी मईशत को यहाँ तक पहुँचाया। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और देखते हैं आगे आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट मज़ीद क्या होता है। सो ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन। और चैंपियंस ट्रॉफी तो होनी है फैब में, उसकी तैयारियां भी जारी हैं और रोज़ाना कहा जाता है जी मुमकिन है आज शेड्यूल का ऐलान हो जाए, तो लेट्स होप कि आज ऐसा हो जाए। लेकिन पाकिस्तान का भी एक और मरहला, एक और इम्तिहान बाकी है। मैं पाकिस्तान टीम की बात कर रही हूँ। T20 साउथ अफ्रीका से जो सीरीज़ रही उसके सारे स्टैट्स आपके सामने हैं। 2 मैचेस हम हार गए, तीसरा मैच बारिश की नज़र हो गया। अब जी वनडे जो सीरीज़ है वो शुरू होने वाली है आज से, और पाकिस्तान ने एक बार फिर इस आज़म का इजहार किया है कि हम अच्छा खेलेंगे। लेकिन अब जो हमारी वनडे सीरीज़ होनी है उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी, चाहे हम किसी भी फॉर्मेट पे खेलें, हमारी जो बैटिंग लाइन है वो बड़ा जो है वो शेकी रहती है, उस पर हम उतना रिलाई नहीं करते। अच्छा जी, नसीम शाह की वापसी हुई है। बाबर आजम की मैं बात कर रही थी इससे पहले, तो बाबर आजम फॉर्म में नहीं है। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो वो भी नहीं अच्छा परफॉर्म करता। अगर हमारे ओपनर कुछ रन्स जोड़ के ना जाएं तो फिर हमारा मिडिल ऑर्डर भी कुछ नहीं कर पाता है। कप्तान जो है मोहम्मद रिजवान, वो ये कहते हैं कि T20 में अच्छे नताइज नहीं दे सके, लेकिन वनडे हम ज़रूर अच्छा खेलेंगे। अब क्या उनकी इस बारे में स्ट्रैटेजी या पॉलिसी, ऐसे भी डिस्कस करेंगे। अब साथ में ज़रा हम कुछ जिक्र कर लेते हैं कि PCB में क्या अंदर खाते हो रहा है। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के मुस्ताफी कोच जैसन गिलेस्पी ने PCB पर इल्ज़ामात की बहुत छाड़ कर दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो चुप नहीं रहे और उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने वजूहात बताई अपना ओहदा छोड़ने की। कहते हैं जी मुझे इन्होंने डमी कोच बना रखा था, टीम सिलेक्शन के लिए कोई मशवरा नहीं लिया जाता था और टिम नेल्सन को हटाए जाने से मुतालिक उनको बिल्कुल लाइल्म रखा गया, जिसका मतलब था कि अब PCB को मेरी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से वो कहते हैं कि इंग्लैंड के हवाले से जब टीम सेलेक्ट हुई तो मुझे एक मैसेज करके ग्रुप मैसेज में बताया गया, मेरा उसमें कोई इनपुट नहीं लिया गया। अब बाबर को भी जब कप्तानी से हटाया गया उसमें भी मेरा इनपुट नहीं लिया गया। ये बहुत सारे शिकवे शिकायत हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब, बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब ज्वाइन करने के लिए, और शाहिद हाशमी नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तौसीफ साहब आपसे पूछ लेती हूँ, ये जो जैसन गिलेस्पी ने इल्ज़ामात की बौछार की है, जस्टिफाइड है उनकी इल्ज़ामात, और क्या वाक़तन वो एक डमी कोच की हैसियत रखते थे, या आप समझते हैं थोड़ी ज़्यादती उनकी तरफ से भी हो रही है? मेरा ख्याल है डमी कोच वाली तो बात नहीं है। सॉरी, उनकी एंट्री हुई थी और बड़े कम वक्त में हुई थी। जाहिर है हमारे पाकिस्तान का जितना स्टाफ था वो सारा कुछ देख रहा था इससे पहले, और जाहिर है उन्होंने उनको ब्रीफ किया होगा जो भी थोड़ा बहुत था। लेकिन ये डमी का लफ्ज तो ठीक नहीं है, ये कोई डमी वमी नहीं होते, ये अपने काम से काम रखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हमारे अगेंस्ट ये चीज है। ये ठीक है कि आपने पहले कहा था कि हम जो है वो कप्तान और कोच की राय नहीं लेंगे टीम बनाने में, जो उन्होंने बात की, तो मेरा ख्याल है ये भी ठीक नहीं था। लेकिन चले, आपने कर दिया जो भी था, बगैर कप्तान कोच के मशवरे के टीमें नहीं बनती, इनपुट होता। फिर तो आपको एक सिलेक्टर भी वहां पे साथ दिया था, जो मैं समझता हूँ अच्छी बात थी, और वो इनपुट दे सकता है, इंसिस्ट नहीं कर सकता। जाहिर है पहले कुछ गलतियां हो चुकी हमारे साथ, तो हम उसको देखते हुए ये बात, बट उनका यहाँ पर से जाकर इस्तीफा देना, देखिए ये लोग स्टाफ अपना पूरा लेके आते हैं, हमने पीछे भी तमाम गोरों को देखा, स्टाफ लेके आते हैं। अब PCB ने का बयान आना चाहिए इस बात पे कि उन्होंने कहा मुझसे नहीं कोई बात होती, मेरे कुलीग को निकाल दिया उन्होंने और मुझसे बात तक नहीं की। तो ये चीजें जो है ये पाकिस्तान के इतना अच्छा फेवर में नहीं जा रही हैं। अब वो काम करता था नहीं करता था, ये तो इनकी अभी इनके मैं नहीं समझता, जितने मैंने अपने उसमें देखे सब और काफी मेहनत करते हैं ये लोग। शाहिद साहब आपसे पूछूंगी, क्या PCB को इसका जवाब देना चाहिए या ये मामला मजीद आगे बढ़ जाएगा? जाहिर है अब जो गैर मुल्की कोच हैं, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो सुनी उन्होंने तो वो तो सोचेंगे 10 बार पाकिस्तान में कोई भी ओहदा संभालने से पहले। आप समझते हैं PCB इस तरह की कोई तैयारी कर रहा है जिसमें जवाब दिया जाएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? यकीनन करेगा। जाहिर है मोहसिन नकवी साहब बहुत बिजी आदमी है, वो देखेंगे कि किस तरह का बयान दिया है गिलेस्पी ने, उसके बाद फिर इसके ऊपर वे करके ज़रूर जवाब देंगे। दरअसल गिलेस्पी को बहुत तम तराक से लेके आया गया था, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी कि वो काउंटी क्रिकेट में यॉर्कशायर को 2 बैक टू बैक टाइटल दिलवा चुके थे, एक बिग बैश T20 लीग उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया को जितवाई थी, तो बड़े तम तराक से आए थे। लेकिन ग्रेजुअली उनका जो इमेज था वो ख़राब होता गया। पाकिस्तान बांग्लादेश से
2-0 हार गया, उसमें बड़ी सिलेक्शन की प्रॉब्लम्स रही। पाकिस्तान ने कोई स्पिनर सेलेक्ट नहीं किया, पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स के ऊपर गया। जिस टेस्ट मैच में शाहीन को नहीं खिलाना चाहिए था, उनके यहाँ विलादत होने वाली थी, उस टेस्ट मैच में उन्हें खिलाया गया। अगले टेस्ट मैच में जो पाकिस्तान को बराबर करनी थी सीरीज़, उससे शाहीन को भी हटा दिया, नसीम शाह को भी हटा दिया। फिर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू हुई तो उनको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान किस बुनियाद पर, किस स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे जीत सकता है इंग्लैंड से, और उन्होंने एक ऐसी फ्लैट पिच बनवा दी। यकीनन उनका भी उसमें इनपुट शामिल था। पाकिस्तान 600 प्लस रन बनवाने के बाद हार गया, पाकिस्तान 500 बनाने के बाद। और फिर जब सेकंड टेस्ट से पहले एकदम से तब्दीलियां की, यकीनन उनको तब्दीलियों को बताया गया था, उनको ये बताया गया कि अब आप सिलेक्शन कमेटी का पार्ट नहीं है। और दूसरे टेस्ट से पहले जब बाबर आजम को ड्रॉप किया जा रहा था तो 2 दिन पहले पिच पर काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हो रही थी, गिलेस्पी की, आकिब जावेद की, अलीम डार की, अजहर अली की। तो ये कहना कि मेरा सिलेक्शन में हाथ नहीं था या मुझे नहीं बताया, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, थोड़ी सी मिस हेल्डिंग हुई है टीम नीलसन वाले इशू में। टीम नीलसन का कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो गया तो उनको बता देना चाहिए था कि जी अब आपकी जरूरत नहीं है, और यही बात जैसन गिलेस्पी को भी बता देनी चाहिए थी कि अब हम टीम नीलसन को नहीं रखेंगे, हम अपना ही आदमी रखेंगे। तो वो कम्युनिकेशन 6-7 साल पहले भी स्टीव रिक्सन के साथ भी हुई थी, जो बहुत नाराज होकर छोड़ के चले गए थे। उनकी तनख्वाह 2-3 महीने की रुकी रही थी। तो पाकिस्तान का इमेज यकीनन खराब हुआ है, लेकिन गिलेस्पी ने ज्यादती की। गैरी कर्स्टन ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, वो भी इख्तिलाफात की वजह से छोड़ के गए। और सब ने, मैंने भी उन्हें कई दफ़ा मैसेज किए, लेकिन उन्होंने एक अच्छे और बुर्दबार आदमी होने का वो दिया, इमेज दिया। अच्छा, और उन्होंने कोई भी बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ नहीं। बिल्कुल, ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तकरीबन तमाम चीज़ों की बात की है, क्योंकि ये बातें वो हैं जो ऑलरेडी आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इख्तिलाफात हुए तो वो उन्होंने अपना ओहदा छोड़ा। तो आसिफ साहब आ जाते हैं वनडे जो हमारी सीरीज़ होने वाली है। जब हमारे कैप्टन ये कहते हैं कि जी हम इसमें ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे, तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए क्योंकि हमारे पास 50 ओवर्स होंगे, ज़्यादा डॉट बॉल खेल सकेंगे, ज़्यादा टाइम पे रुक सकेंगे, वो प्रेशर नहीं होगा जो T20 में होता है, इसलिए जीत सकेंगे? क्या स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है आपको? देखिए, साउथ अफ्रीका में खेलना इतना आसान नहीं होता, सबको मालूम है। ठीक है, T20 है, वो एक ऐसा फॉर्मेट है, बट सॉरी टू मैं ये जरूर कहूँगा कि रिजवान की कप्तानी हमें कहीं भी अच्छी नजर नहीं आई इस पूरे उसमें। और डेफिनेटली अगर आप कप्तान हैं तो मशवरे करके बात कर सकते हैं। आप यंगस्टर को खिला रहे हैं, आप उसको पूरा कॉन्फिडेंस देने वाली बात करनी चाहिए आपको। और फिर आपकी चेंजेस वगैरह ये सारा कुछ जो था वो मेरे ख्याल है आपके उसमें नहीं गया। मुझे नहीं पता किस वजह से वो जो है जी तौसीफ साहब, ठीक है, थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना है। शाहिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। और थोड़ी सी ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं। 9 से 10 आपका हमारा साथ, अब 10 से 11 भी आपका हमारा साथ रहेगा। और इस घंटे में भी बहुत हमारी कोशिश होती है, हमारी टीम की कोशिश होती है ऐसे सेगमेंट्स लेकर आए जो आप लोग देखना चाहते हैं, जिसका फीडबैक भी हमें मिलता है, जिसकी डिमांड भी हमसे की जाती है। सो बहरहाल हम सोशल मीडिया ऐप्स में मौजूद है, यूट्यूब पर भी आप हमें देख सकते हैं। इसी तरीके से 4 बजे शो रिपीट होता है, आप वो भी हमें वहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही हमारा फेसबुक पेज है, अगर आपने कोई सेगमेंट मिस कर दिया है तो वहाँ जाकर आप विज़िट करके वो सेगमेंट देख सकते हैं। कराची में 5 रोज़ा कुतुब मेले का इनेकाद हुआ और जो नंबर सामने आए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। 5 दिनों में तकरीबन 5 लाख लोगों ने विज़िट किया और 25 लाख किताबें फ़रोख्त हुई। सो दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड के लोगों का इंटरेस्ट किताबों की तरफ रुझान है अभी भी, जबकि हम जिस टाइम में जी रहे हैं वो इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, आईपैड का ज़माना है, और लोग प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर जो अवेलेबल है वो पढ़ लिया जाए। किताबें भी ई बुक्स, ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, वो पढ़ ली जाए, लेकिन जो किताब, जो फिज़िकल बुक होती है ना, उसका अपना अलग ही चार्म होता है। तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सियासत की आज बात नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब पूरा 1 घंटा गुजर गया और हमने पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं किए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, पंजाब असेंबली में जो तनख्वाहें बढ़ी हैं वो हमने ज़रूर डिस्कस की थी, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मुज़ाकरात के हवाले से। तो मुज़ाकरात में हो ये रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तजवीज़ दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो ये कहते हैं कि पहल करें, ज़बान नरम करें और चुप रहें।
اچھا، یہ 3 ڈیمانڈ رکھ دی ہیں خواجہ آصف نے. اس کے بعد کہتے ہیں ہم سوچیں گے کہ مذاکرات کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا, اس کے بعد دیکھی جائے گی کیا ہونا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ دراصل مذاکرات ہیں. یہ ظاہر ہے لفاظی جو تھی خواجہ آصف کی وہ آپ نے ملاحظہ کی. اب پی ٹی آئی کے اندر الگ الگ رائے ہیں, بات چیت کرنا ہے تو حکومت یا اسپیکر کو بتائیں. پھر ایک جو انکشاف انہوں نے کیا وہی کہتے ہیں جی حکومت تو تیار ہے اس ان دا سینس کہ آپ بتائیں اگر حکومت کو اسپیکر کے تھرو, لیکن پی ٹی آئی نے ابھی تک کسی نے وہاں سے رابطہ نہیں کیا ہے, تبھی جواب دیا جا سکتا ہے. بیرسٹر عقیل کہتے ہیں جی گارنٹی کون دے گا, کیونکہ ان کا ہر لیڈر مختلف بات کرتا ہے, تو کس کی بات سنی جائے, اگر ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے تو پھر کیا ہوگا. پھر یہ کہ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذاکرات غیر مشروط ہوں گے, جبکہ علی امین نے کارکنوں کی رہائی کی جو ہے وہ شرط رکھ دی ہے. اب بیرسٹر گوہر اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ سن لیتے ہیں. وہی کہتے ہیں بانی جو ہے وہ سول نافرمانی کی جو کال ہے وہ واپس لے سکتے ہیں. آپ سنا ہے کہ حکومت مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ کوشش کریں کہ مذاکرات ہوں. نہیں, دیکھو جس کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہونے ہیں انشاءاللہ تیار ہوں گے. سول نافرمانی تحریک کے حوالے سے تحریک انصاف ابہام کا شکار کیوں ہے؟ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, وہ خان صاحب ہی کی کال ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے وہ جو خان صاحب کی کال ہوتی ہے وہ صرف اور صرف خان صاحب ہی کال اپ کر سکتے ہیں. آپ اسے سپورٹ کر رہے ہیں سول نافرمانی کی تحریک کو؟ وہ خان کی کال ہے, کیا بات ہے جی, سپورٹ ہم سب کرے گا. آپ سپورٹ کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے جب خان کا فیصلہ ہوگا. مذاکرات کی ہماری آفر موجود ہے اور مذاکرات کی آفر کنٹینیو کرے گی, کیونکہ خان صاحب نے ہی کمیٹی بنائی ہے اور خان صاحب کا یہ اعلان ہے, اس کے مطابق آگے چلیں گے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں کوئی پیش رفت. بڑا امپورٹنٹ ہے بیان بیرسٹر گوہر کا, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں وہ انشاءاللہ تیار ہوں گے, اور حکومت یہ کہہ رہی ہے ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا. تو چلیں اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. قیوم صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ذرا بتا دیجئے رابطہ ہوا نہیں ہے یا بڑی خاموشی کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں؟ پھر جب بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جس سے ہونے ہیں وہ تیار ہو جائے گا, تو کچھ آئیڈیا ہے آپ کو کس سے مذاکرات ہونے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میری آواز واپس آ رہی. اچھا, اس کو ٹھیک کریں. ہاں ٹھیک ہے. قیوم صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ان کی آواز ایکو ہو رہی ہے, تو اس کو دیکھ لیجئے گا. اوکے, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات تو بہت اچھی بات ہے, مذاکرات ہونے چاہیے کیونکہ مذاکرات سے ہی بات آگے چلے گی. لیکن تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب سے شروع ہوتی ہے اور ان کے اوپر ختم ہو جاتی ہے. کسی لیڈر کے کسی بیان کی کوئی وقت نہیں ہے, اور یہ اگر متفقہ طور پہ بھی یہ جو ابھی موجودہ چیئرمین ہے اور یا ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کوئی بیان دیں تو اس کو بھی مسترد کر دیا جاتا ہے. تو دیئر فور یو ہیو ٹو بی ویری ویری کلیئر کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آف کورس حکومت نے تو بارہا پولیٹیکل پارٹیز نے ساری نے یہ کہا کہ مذاکرات ایک اچھی چیز ہے, ہم مذاکرات کے لیے ہمیشہ ریڈی ہیں. آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی مفاہمت کی بات کی, بلاول صاحب نے بھی کی, آپ کے رانا ثناء اللہ نے ہمیشہ کہا کہ آپ 1 قدم آئیں ہم 2 قدم آئیں گے اور ہم کریں گے. تو میرے خیال میں یہ ابھی بال از ان دی کورٹ آف تحریک انصاف کہ وہ یہ سوچیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اور وہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھے انکنڈیشنل اور یہ دیکھیں کہ ملک کے پرابلمز کیا ہیں اور سیاسی مسائل کیا ہیں, سیکیورٹی کے کیا ہیں, معیشت کے کیا مسائل ہیں, ریجنل ایشوز کیا ہیں. آئیں گے تو کنڈیشنز کے ساتھ ہی نا, کچھ پوائنٹس ہوں گے تو انہی پر تو مذاکرات ہوں گے, ورنہ تو اگر بات چیت کرنی ہے, کافی شافی چائے پینی ہے تو پھر تو کوئی پوائنٹ نہیں ہے. ڈسکشن جو ان کے مسئلے ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں اور وہ آئی تھنک اسی کو لے کے بات کریں گے. تو حکومت تیار ہے, پھر حکومت کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. اگر فرض کریں خواجہ آصف کہہ رہے ہیں جی زبان کو چپ رکھیں, لہجہ نرم کریں, تو ان کنڈیشنز کے ساتھ آپ کیا آفر کریں گے انہیں؟ دیکھیں یہ آف کورس آپ صدف بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو کچھ اس کے ٹاکنگ پوائنٹس یا ان کا کوئی ایجنڈا یا ٹی او آرز وغیرہ کو طے کرنا ہوگا نا. تو آپ پہلی میٹنگ میں یہی چیزیں طے کرتے ہیں کہ اوکے لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ سی کہ آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں اور حکومت کی کیا توقعات ہیں, حکومت کے کیا گلے شکوے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کے جلسے جلوس دھرنے 2013-14 سے شروع ہوئے, کبھی کسی نے نہیں روکا. یہ 9 مئی کے بعد جو تجربہ ہوا ملک کو, جس کی مثال پاکستانی تاریخ یا دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی, تو پھر پاکستان ڈسا گیا اور پھر ہم بہت پیچھے چلے گئے اور پھر آپ نے دیکھا باقی یلغاریں ہوتی نہیں.
इन सारी चीजों में रवैयों में तब्दीली की जरूरत है और इमरान खान साहब को चाहिए कि सियासत के अंदर आप मफाहमत की बात करते हैं, मिल के बात करते हैं, आप अपना व्यू पॉइंट देते हैं, दूसरे का सुनते हैं। तो आप अगर बंदूक की नोक के साथ एक तरफ धमकी दें कि हम आ रहे हैं और कफन बांधेंगे और गोली के जवाब गोली से होगा, और आपके पास एक सूबे की हुकूमत हो, यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और आप ये देखें कि इनके सारे MNAs MPAs गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं और दे आर, तो व्हेन यू से कि हम जलगात कर रहे हैं तो ये फिर प्रोटेस्ट नहीं रहती, ये फिर बगावत है। और अभी तक तो जो कुछ हुआ ऑनेस्ट टू गॉड, मैं आपको सदर बताऊं कि ये एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर यहाँ तक आ गया कि वो ये कह रहा है कि मैंने ये करना है वो करना है, आई डोंट नो। हुकूमत बहुत ज्यादा स्पेस दी है और इसके ऊपर बड़ा सख्ती से अमल करना। आपने कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक की आपने कॉल दी हुई और आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, अब वो ये कहते हैं जी ये कॉल वापस भी ली जा सकती है, तो गवर्नमेंट संजीदा है वैसे, मुज़ाकरात करना चाहती है? मियाँ साहब का कोई स्टेटमेंट, कोई डिस्कशन उनकी आपसे हुई हो, आप लोगों से, पार्टी के वर्कर से? देखिए, मियाँ साहब खा वो नवाज शरीफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब या पार्टी की जो इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, हमेशा मुज़ाकरात के फेवर में। इसी तरह चूंकि कोलिशन गवर्नमेंट है, पीपल पार्टी भी इसके फेवर के अंदर है। देखिए, मुज़ाकरात ही मुल्कों को आगे लेके जाते हैं, पार्टियां बैठें और ये देखें कि हमारे सियासी इश्यूज इंटरनल क्या हैं और रीजनल इश्यूज क्या हैं, सिक्योरिटी के क्या हैं और बैनुल अक़वामी तौर पे क्या हो रहा है। आप मिडल ईस्ट की सिचुएशन देख लें, आपकी ये सीरिया के अंदर क्या हुआ है, ईरान को कैसे थ्रेट किया जा रहा है, उसकी इम्प्लीकेशन पाकिस्तान के लिए क्या है। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी सियासत को बचाने के लिए और प्रोकियल अप्रोच के साथ मुल्की मफादात को दाव पे बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं सदफ, कल कोई और था, आज कोई और है, कल कोई और होगा, लेकिन खुदा के लिए मुल्क को इस मुश्किल से निकालने के लिए आप बैठें और यकसुई के साथ बैठें। सुबह आपकी कोई और बात है, शाम को कोई और बात है, आप एक तरफ से मिलना चाहते हैं, दूसरी तरफ से थ्रेट भी करना चाहते हैं, तो इस तरह तो नहीं होता। हुकूमत तो अल्लाह के करम से अब स्टेबलाइज हो गई है, मुआशी लिहाज से आप देख लें, आपकी स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, आपके इंटरेस्ट रेट्स बेटर हो गए हैं, आपकी फॉरेन रिमिटेंसेस बेहतर हैं, लेकिन लॉट हैज टू बी डन और उसके अंदर पूरी कौम का। सिमिलरली आप देखें, अफगानिस्तान की पॉलिसी नीड्स अ रीविजिट, क्योंकि अभी तक उससे काम नहीं हुआ, चूंकि वहां से दहशतगर्द आ रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर हालात के ऊपर फोकस करना जरूरी है और पूरा कौमी नुक्ता नजर होना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है, वहां BLA क्या कर रहा है। इन चीजों को रोकेंगे तो पाकिस्तान मुआशी लिहाज से भी बेहतर होगा और खुदा के करम से पाकिस्तान का इमेज बैनुल-अक़वामी लेकिन हम तो ये देख रहे हैं मुज़ाकरात की जो डिस्कशन है, ये कहते हैं ना एक सर्कल के अंदर ये घूम रही है और सब बातें करते हैं, प्रैक्टिकली होता कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो आप इंतज़ार में हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोई ऑफिशियली तौर पे आपको आगाह करे, किसी को इन्फॉर्म करे, क्या तरीका अपनाए जिससे आपको आइडिया होगा कि जी वो संजीदा है मुज़ाकरात के लिए? या बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये है कि आपस में तहरीक-ए-इंसाफ वाले अपने लीडर से बात करके ये बताएं कि आप तो जेल में हैं, तो चेयरमैन तो बाहर है, इसको ऑथराइज करें कि ये बैठ के तो एक हम लाया अमल तैयार करें और फिर हम ऑफिशियली अप्रोच करें हुकूमत को थ्रू द स्पीकर और व्हाटएवर, और उनको कहें कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। इसी तरह फिर हुकूमत अपने तौर पे सर जोड़ के बैठेगी और कहेगी कि बिस्मिल्लाह हम इसको जरूर करना चाहते हैं और ये जरूर होना चाहिए। तो जी ठीक है। थैंक यू सो मच। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ थे और गवर्नमेंट इंतज़ार कर रही है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कह रही है जिनसे होने मुज़ाकरात इंशाअल्लाह वो तैयार हो जाएंगे। अब ये सिर्फ बातों की हद तक मामलात हमें दिखाई दे रहे हैं, प्रैक्टिकली अभी तक कुछ इस वाले से अप्रोच हमें दिखाई नहीं दी। लेट्स सी क्या होता है। चले जी, कराची वापस आते हैं और कराची में कल रात बड़ा इशू हुआ और बड़े दिनों बाद हमें ऐसे मंजर देखने को मिले जो कल देखने को मिले, और वो हैं कराची की सड़कों पर एहतजाज हुआ। शहरी जो हैं कराची में वो पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं और जाहिर है ये एक दिन की बात नहीं है, ये कई दिनों से पानी की बंदिश का सामना है। एक मसला निकलता है, दूसरा मसला और बढ़ जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो लोग 4 बजे निकले थे वो 8 बजे तक भी कल सड़कों पर फंसे रहे, कुछ लोग 10 बजे तक भी फंसे रहे, और ये कराची की सड़कों का हाल था, किसी को रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर इसी दौरान कराची में जो सबसे बड़ा खौफ होता है जब आप किसी ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं वो ये होता है जी मोबाइल स्नैचिंग। सो बहुत सारी कल हमने देखा ये वाक़यात भी रिपोर्ट हुए, लोगों से नकदी छीन ली गई, मोबाइल छीन लिया गया।
کیا یہ احتجاج مؤثر ثابت ہوگا کہ نہیں؟ لوگ اتنی مشکل میں کل پھنسے رہے، ظاہر احتجاج اپنی جگہ، لیکن اس کی وجہ سے کیا یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا کہ کراچی میں کیوں پانی لوگوں کو نہیں مل رہا ہے؟ بتایا جا رہا ہے جی بحران جو ہے وہ کافی زیادہ گھمبیر ہو گیا ہے، اور واٹر بورڈ کے مطابق دھابے جی اور گھارو پمپنگ سٹیشنز میں بجلی کا جو بریک ڈاؤن ہوا ہے، سو وہاں پانی کی سپلائی عارضی طور پر معطل ہے۔ اب یہ عارضی کتنی عارضی ہے، کیونکہ لوگ تو سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور اگر آج بھی نکل آئے تو آج بھی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے۔ پہلے ہی کراچی یونیورسٹی کے قریب جو ریڈ لائن کی تعمیرات ہے اس کے دوران 84 انچ قطر کی جو لائن ہے وہ متاثر ہوئی، اور جس کا مرمتی کام جو ہے وہ کیا گیا، لیکن اس میں پھر سے رسا ہو گیا۔ اب یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ یہ بڑا ایشو ہے۔ شہری احتجاج کر رہے ہیں، مہنگے داموں، اچھا ٹینکر والے جو ہیں نا، ٹینکر مافیا، وہ اور چارجز بڑھا دیتے ہیں جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، 6,000 کا 12,000 کا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے 20,000 تک قیمت چلی گئی ہے، اور پھر وہ ملتے بھی نہیں ہیں۔ مطلب ٹینکر والے کو آپ بلا کے تھک جائیں، وہ اپنے ٹائم پر ہی آئے گا۔ سو افضل پرویز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ذرا ان سے یہ جانتے ہیں کہ کون سے ایسے علاقے ہیں کراچی شہر کے جو پانی کے اس بحران سے متاثر ہیں۔ تو افضل بتائیے گا کتنا فیصد حصہ کراچی کا پانی کی سپلائی سے متاثر ہے؟ جی صدف، آپ نے کہا کہ کون سے علاقے ہیں، دیکھا جائے سب سے پہلے جو آپ نے بات کری تھی بنیادی مسائل کے حل کے لیے، حل تو کہیں ہے ہی نہیں۔ اس کی سب سے بڑی مین وجہ ہے کہ جو بنیادی مسائل ہیں اس کے حل کرنے کے حوالے سے جو شہری اداروں کے سربراہان ہیں وہ سنجیدہ نظر نہیں آتے۔ 84 انچ کی لائن جو 27 نومبر کو ڈیمیج ہوئی تھی 3 مقامات سے، ان میں جو 3 اضلاع ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے، اس میں کلفٹن، ڈیفنس، PCHS، چینی سرکوٹ جو صوبہ وزیر بلدیات کا اپنا حلقہ ہے، وہ گزشتہ 20 روز سے پانی کو ترس رہا ہے۔ لیاقت آباد، طارق روڈ، خداداد کالونی، اور اس کے بعد گلستان جوہر، گلشن اقبال، یہ وہ علاقے ہیں جو بڑی تعداد میں اس لائن سے پانی کی فراہمی حاصل کیا کرتے تھے۔ لیکن دن دیکھا جائے تو 27 نومبر کو جو ریڈ لائن بس منصوبہ ہے اس کی تعمیرات کے دوران ایک ڈرل کی گئی، اس ڈرل کے دوران وہاں ایک سراغ ہوا، 3 جگہ سے متاثر ہوا تھا۔ 28 نومبر کو باخبر سویرا کی جانب سے یہاں لائیو کیا گیا، اور واٹر کارپوریشن کے عملے نے جو سست روی کا جو کام کر رہے تھے اس میں تیزی لائے، اور انہوں نے وہ جو ایک حصہ تھا وہ پر کر کے مرمت کر کے پانی کی جب دھابے جی سے پانی کی فراہمی کھولی، جو تیسرا حصہ تھا وہ لیکیج ہو گیا۔ اس طرح جو یونیورسٹی روڈ پر پانی جمع ہونے سے جو ہے ٹریفک کی آمد و رفت بھی متاثر ہونے لگی۔ افضل ایک بات بتائیں جی، اتنے بڑے پروجیکٹ پہ کام ہوتا ہے، ریڈ لائن پروجیکٹ پہ کام ہو رہا تھا، یقیناً جو ٹیم ہوگی ان کو تمام تر معلومات ہوگی، میپس ان کے پاس ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ انڈر گراؤنڈ جو ہے کہاں پر پائپ لائنیں بچھی ہوئی ہیں، کہاں سے ہمیں جو ہے راستہ نکالنا ہے۔ اتنی بڑی غلطی انجینئر سے کیسے ہو سکتی ہے، اور کیا کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اس چیز کا؟ صدف، دیکھا جائے تو MD واٹر کارپوریشن کی جانب سے سوال کیا گیا تھا کہ جب باقاعدہ طور پر اتنا بڑا منصوبہ بن رہا ہے تو اس حوالے سے کوئی حکمت عملی بنائی گئی ہوگی، تو ان کا کہنا تھا کہ ریڈ لائن انتظامیہ کو باقاعدہ طور پر جو واٹر کارپوریشن کی سب سے بڑی لائنیں گزر رہی ہیں اس کے نقشے فراہم کیے گئے تھے۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو ریڈ لائن انتظامیہ کی غفلت لاپرواہی ہے، جس کے باعث وہاں جہاں نقشے میں بتایا جا رہا ہے کہ 84 انچ کی پانی کی سب سے بڑی لائن گزر رہی ہے، تو وہاں واٹر انجینئر کے عملے کو طلب کیا جائے، وہاں ان کو بتایا جائے کہ یہاں ہم کھدائی کریں گے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو مینول طریقے سے کھدائی کی جاتی ہے، لیکن یہاں تو ہیوی مشینریاں استعمال کی جا رہی ہیں، جو ہم نے 28 نومبر کو ایک بڑی سی ڈرل مشین دکھائی تھی جو باقاعدہ طور پر کئی فٹ 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے سوراخ کر دیتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے لائنیں متاثر ہوں گی۔ رہی دوسری بات تو واٹر کارپوریشن کی جانب سے ریڈ لائن انتظامیہ کو 35 ملین کا جرمانے کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ 35 ملین ان کو ادا کرنے ہوں گے جو واٹر کارپوریشن کے خرچ ہوئے ہیں۔ جی اچھا افضل، ایک چیز اور بتا دیں، آپ کے پیچھے ہم کام ہوتا دیکھ رہے ہیں، تو یہ کچھ بتایا گیا ہے، کوئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کب تک مکمل ہو جائے گا، یا جس طرح کراچی میں بہت سارے علاقے اسی طرح کام ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کہیں پہ سال گزر گیا ہے، کہیں پہ مہینے گزر گئے، یہ کب تک ٹھیک ہو جائے گا؟ صدف، دیکھا جائے تو MD جو ہے واٹر کارپوریشن ان کی جانب سے 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا، دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ آج دوسرا روز ہے،
बुध के दिन पानी की ये मरम्मत, ये जो लाइन है इसकी मरम्मत कर ली जाएगी। उसके बाद बाकायदा तौर पर इस लाइन में जो जुमेरात से पानी जो है सप्लाई शुरू किया जाएगा। उसके दौरान वाटर कॉरपोरेशन की एमडी की जानिब से ये भी दावा किया गया कि जिन इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर है वहाँ वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से टैंकर फराहम किए जाएंगे। ये तो ऐलान कर दिया, लेकिन जो टैंकर 5,000 का मिलता था अब वो 12,000 20,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है और शहरी लेने पर मजबूर है। टैंकर माफिया की इस वक्त चांदी हुई हुई है। थैंक यू सो मच। हम बता रहे थे, अफजल हमारे नुमाइंदे साथ थे और कराची के शहरियों के मसाइल आपने देख लिए क्या है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं CEO सैयद सलाउद्दीन, CEO हैं कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन के। थैंक यू सो मच सलाउद्दीन साहब ज्वाइन करने के लिए। पहले तो मुझे ये बताइएगा, इतनी बड़ी गफलत हुई है, आपके लिए भी उतनी हैरान कुन बात है ये जितनी मेरे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए है कि ज़ाहिर है एक 84 इंच की जो पाइपलाइन है, मेन पाइपलाइन है, एक अच्छी ठीक ठाक कामत का शख्स जो है उसमें से गुजर जाए, उसको नहीं मैप में देखा गया या कोऑर्डिनेशन नहीं रही इदारों के साथ, उसे डैमेज कर दिया, पानी भी ज़ाया हो रहा है, शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल में है। सो ये गफलत हुई कैसे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये जो काम है जो BRT का इस वक्त चल रहा है वो पिछले 1.5 साल से ऑन रोड है और ये किसी इदारे का इशू नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स को और जो वहाँ पे इंजीनियर्स होते हैं, जब उनको ड्राइंग्स दे दी जाती है तो उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको प्रॉपर मार्क करे और मार्क करने के बाद उसको एक्सपोज करे। एक्सपोज करने के बाद वहाँ पे पोरिंग करे, क्योंकि ये जिन जगहों से गुजर रहा है उन जगहों पे ऑलरेडी हमारी 384 डाया की पाइपलाइंस, जिसको हम साइफन कहते हैं 19, वो गुजर रहा है। वहाँ से कराची का 50% पानी जो है वो इधर से गुजर रहा है। अब इसमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है स्ट्रेटेजिकली वो ये है कि आपको जब ड्राइंग्स और चीज़ें दे दी गई तो आपको ये ज़रूरी था कि उस SOP को फॉलो करते। अब यहाँ जो गफलत हुई है वो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से और वहाँ जो सुपरवाइजरी स्टाफ है उसकी तरफ से हुई है, जिसको मैंने आइडेंटिफाई करके CO ट्रांस कराची को लेटर भी लिखा है और उन्होंने इसको माना भी है कि इसको इमीडिएटली हमें रिपेयर के लिए जितने रकम भी चाहिए हम वो भी देते हैं और इसका अजाला भी करते हैं। लेकिन यहाँ ये बात गौर तलब है कि देखिए, ये सिर्फ पूरा स्ट्रेच ऐसा कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने जहाँ हमारी पाइपलाइंस जा रही हैं, यहाँ पे बहुत केयरफुली काम करने की जरूरत है। और आगे आने वाले वक्तों में जब BRT इसके ऊपर रवा दवा होगी या रेड लाइन रवा दवा होगी तो हमें कहीं कोई वीक सेक्शन नहीं छोड़ देना, क्योंकि कल फिर हम क्या दोबारा आके इसको पूरा खोदेंगे और फिर इसको ठीक करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हमें ये इंश्योर करना है और हमारे तमाम इंजीनियर्स इस वक्त अंदर मौजूद हैं, वो जाके ये बड़ा स्ट्रेच है 32 फुट का सेक्शन। जी अच्छा, हम आपको रिकनेक्ट करते हैं सलाउद्दीन साहब। आपकी आवाज़ ब्रेक होकर आ रही है, आई थिंक इंटरनेट का इशू है। लेकिन ये है कि सवाल ये है कि कितने दिनों में ये मसला हल हो जाएगा। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि शहरी जिस तरह एहतजाज कर रहे हैं, मरम्मती काम हुआ लेकिन फिर भी मुख्तलिफ जगह से रसाव बाकी है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी आ जाता है और फिर जब शहरी एहतजाज करते हैं तो ट्रैफिक जैम भी हो जाता है। अब दूसरे ये कि सड़कें जो हैं शहरी जब एहतजाज कर रहे हैं वो बंद भी हो जाती हैं। सलाउद्दीन साहब, अब आप मुझे बताइएगा, जो आप गुफ्तगू कर रहे थे, मसला सारा ये है कि मरम्मती काम होने के बावजूद भी शिकायत आ रही है, मुख्तलिफ पॉइंट से रसाव हो रहा है, तो ये इसकी वजूहात क्या हैं और मुकम्मल तौर पे ये मसला कब हो सकता है? जी देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि हमने इसको रिपेयर कर दिया था 8-9 तारीख के दरमियान, और जब इसको दोबारा चलाया गया तो इसका जो थ्रॉटल करने की वजह से जो वीक सेक्शन थे, जो ऑलरेडी BRT के ही एक ट्रांसम की वजह से डैमेज हो गया हुआ था, वो नुमदार हुआ। देखिए, अब इसको इशू ये है कि सेक्शन जब वीक हो जाता है तो उसको हम इंश्योर करना चाहिए कि कहीं आगे चल के ये ना हो। अभी हमारी कोशिश ये है कि अगले 48 घंटे में कराची वालों को ये जो पानी बंद हुआ है पानी जो है वो वापस दे दें। हमारी जो सबसे ज्यादा इस वक्त कोशिश ये है कि इस पूरे सेक्शन में कहीं भी कोई जॉइंट अब ऐसा ना रहे जहां से कहीं दोबारा हम इसको पंप करें तो परेशानी हो। अच्छा। इसीलिए इसको भी देखा जा रहा है। बाकी 32 फुट का जो सेक्शन है उस पर वेल्डिंग जारी है अभी, जो अगले 16 से 32 घंटे जारी रहेगी। उसके बाद इसको इंश्योर करेंगे कि ये बिल्कुल फुल प्रूफ हो और इंशाल्लाह ताला पानी हम
कल रात 12 बजे से इंशाल्लाह ताला रवाना करेंगे। तो कुछ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपकी रिपोर्ट ज़ाहिर आप तक पहुंच गई होंगी, कौन कौन से इलाके हैं जो मुतासिर हैं? जी देखिए, इस वक्त नीचे डाउन स्ट्रीम पे जो गुलशन का इलाका है, PCHS है, क्लिफ्टन का इलाका है, फर्दर डाउन स्ट्रीम पे हमारे लियारी का इलाका भी हमें थोड़ा सा जो है वो इफेक्ट कर रहा है, लेकिन K3 के पानी से हम उसको ऑगमेंट कर रहे हैं। हमें इस वक्त जो सबसे ज़्यादा परेशानी हमें दरपेश है वो ये है कि ये 70 MGD तो हमने ऑलरेडी बंद किया हुआ है, लेकिन क्योंकि ये सारा सिस्टम हमारा इंटरकनेक्टेड है और अगर खुदा ना खास्ता उसको हम दोबारा उसको थ्रॉटल करते हैं तो कहीं खुदा ना खास्ता कहीं किसी जगह पे डैमेज ना हो, लिहाजा कुछ चीज़ें हमने एहतियातन भी बंद की हैं। अदरवाइज तो हमें पानी की एग्जैक्ट शॉर्टफॉल जो है वो 70 से 80 MGD की है, लेकिन ये शॉर्टफॉल इन्हांस हो जाती है बिकॉज सिस्टम की इंटरकनेक्टिविटी के बाद। लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश हमारी यही है, जैसे मैंने आपको बताया, कि इसको 48 घंटे में इंशाल्लाह ताला पानी जो है वो बहाल कर दें। और मुझे ये बताइएगा कि जिन इलाकों में पानी नहीं मिल रहा लोगों को, तो वहाँ पे पानी सप्लाई करने के लिए क्या इंतजाम हैं? देखिए, पानी का सबसे पहला काम हमने ये किया कि जहाँ अवेलेबिलिटी है टैंकर्स के थ्रू वहाँ हम पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि इन हाइड्रेंट को भी फाल रखना बहुत मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो वो वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। हमने कोशिश की है कि जो टेल एंड्स के इलाके हैं उनमें जितना पानी का टैंकर्स यहाँ से निकलें उसको जो जनरल पब्लिक सर्विस रेट है, हमारा कंट्रोल रेट है, हम उस पर प्रोवाइड करें। अच्छा। जो ये महंगा पानी बेच रहे हैं, हमने कोशिश की है कि रिटेल की जो रसीद है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक रसीद है, उस पे ही सब सार्फिन को पानी मुहैया किया जाए। लेकिन लोग कैसे राब्ता करें? कोई नंबर है अगर टैंकर उन्हें मंगवाने हैं? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है टैंकर का हुसूल जब डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइवेटली जब लोग मंगवाते हैं 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, और आप हर हफ्ते कितनी दफ़ा इतना पैसा खर्च करेंगे? जेब अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ज़रा बताइएगा, रेट भी बता दीजिएगा, दूसरे नंबर भी बता दीजिएगा। जी, 1334 हमारा 4 डिजिट का नंबर है इस वक्त, उस जिसको हमने इस वक्त फाल किया हुआ है। हमारे तमाम ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसको डिस्पैच भी कर रहे हैं। 1334 4 नंबर पे मबनी। ठीक है, ये आसान तरीन है, इस पे कॉल कीजिए और जो आपको टैंकर से रिलेटेड जरूरत है वो उसको इंशाल्लाह ताला हम जरूर पूरा करेंगे। और आप हमें रेट भी बता सकते हैं, क्या चार्जेस लिए जा रहे हैं लोगों से? जी, रेट तो इस वक्त देखिए, क्योंकि मैंने सारा GPS पे कर दिया है, तो इस वक्त हमारा 3000 गैलन का जो रेट है, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द जो ट्रैवल है, लेकिन इसको 5500 रुपए में, 5400 रुपए में हम इस वक्त सेल कर रहे हैं, जो कि अगर विद इन 10 किलोमीटर्स है तो वो 3000 का टैंकर का जो है वो 4300 रुपए में जाएगा, अगर 10 किलोमीटर्स के अंदर ही है। ये हमारी पॉलिसी है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि इसको बहाल कर दें, तो फिर लोगों की तकलीफ में कुछ आसानी आ सकेगी। ठीक है, और आपने हमें नंबर भी बताया 1334, ये 4 डिजिट का नंबर है, इस पर कॉल करके आप टैंकर मंगवा सकते हैं। और कोई अगर शिकायत हो लोगों को, तो क्या शिकायत भी इसी नंबर पे की जा सकती है सलाउद्दीन साहब? जी, इसी नंबर पे। देखिए, बेसिकली हमारा GRM का नंबर है, ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म का नंबर है, लेकिन हमने इसमें इस वक्त 20 से ज्यादा ऑपरेटर्स और उसको लिंक कर दिया है अपने टैंकर्स के जो हाइडेंट के इंचार्जेस हैं उनके साथ। जैसे ही यहाँ पे आते जाएंगे वो मुस्तकिल बुनियादों पर यहाँ एंटर करते जाएंगे कि आपकी डिमांड भी आ गई है। उसके अलावा हमारी IVR सिस्टम तो अलहदा चल रहा है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जिस तरीके से भी हम इंटरेक्ट कर सकते हैं हम इंटरेक्ट करें इनके साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। सलाउद्दीन साहब मौजूद थे, CEO कराची वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन, और उन्होंने नंबर भी हमारे साथ शेयर किया है, चार्जेस आपको बता दिए हैं। अब आप अगर आपको ज़रूरत है पानी मंगवाने की तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं 1334 पर, लेकिन इसकी उम्मीद ज़रूर हम रखते हैं कि बहुत जल्द ये मसला हल हो जाएगा और शहरियों को इस तरह के मसाइल का सामना आगे आने वाले दिनों में नहीं करना पड़ेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और सर्द मौसम की बात करें तो उसके पहनावे जैसे अलग होते हैं, इसी तरीके से खाबे भी अलग होते हैं, और लोग ज़ाहिर है इसमें सूप बड़े पिए जाते हैं, हलवे खाए जाते हैं, कंफर्ट फूड जो है उसकी तरफ जाते हैं। तो एक ट्रेंड बड़ा मशहूर है, वो जी है दूध में जलेबी और छुआरे डाल के, वो खाने का मज़ा ही अलग है। गरम गरम दूध में जब गरम गरम जलेबी होती है ना, ओ हो, उसका मज़ा ही दोबारा। मैंने खाया नहीं है, लेकिन मैंने लोगों से सुना है
आई विल ट्राई कैलोरीज को देखते हुए. लेकिन राफे हुसैन इस हवाले से हमें मजीद बता रहे हैं. गरम दूध और इसमें छुहारे और जलेबी, सर्द मौसम में जिस्म को तवानाई देने का सस्ता नुस्खा. सर्दियों की शामों में महक और धुआं उड़ाता कड़ाही का दूध है सर्दियों की खास सौगात जो शहरियों को खींचता है अपनी जानिब. पक पक कर दूध का रंग हो जाता है जब गुलाबी, तब तैयार होता है छुहारे वाला दूध जो देता है जायके के साथ जिस्म को तवानाई और जेब पर भी भारी नहीं. सर्दियों में बहुत फायदेमंद होता है. इसके अंदर छुहारे और हम बादाम पिस्ते डालते हैं. ये पहले हम बाहर अलग पतीले में पकाते हैं, उसके बाद हम फिर कढ़ाई में डाल के इसको इतना पकाते हैं कि अपना कलर चेंज कर देता है. किसी को पसंद है गर्मा गर्म दूध में जलेबी तो कोई है शौकीन बादाम पिस्ते और छुहारे के जायके का. पीने वाले कहते हैं इससे सर्दी का एहसास होता है कम और अगर मलाई भी शामिल कर लें तो मजा हो जाता है दोबाला. मलाई भी माशाल्लाह भरपूर दूध में आती है और सर्दियों के लिए दूध बेहतरीन है माशाल्लाह से. छुहारे वाला दूध और पिस्ता बादाम डले हुए हैं और बेहतरीन गिज़ा है. दुकानों पर बड़े बड़े प्यालों में गर्मा गर्म दूध जलेबी और छुहारे पीने वाले शौक से घर भी लेके जाते हैं. हिकमत से तल्लु रखने वाले कहते हैं कि ये सौगात आंखों के गिर्द हल्के खत्म करने, चेहरे की रंगत निखारने और कई बीमारियों का इलाज भी है. कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ राफे हुसैन, AON न्यूज़ कराची. क्या बात है भाई, राफे हुसैन ने भी लगता है काफ़ी इंजॉय किया है. अब जिस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं हम, अक्सर और बेशतर वो मामला अपने शो से, प्लेटफॉर्म से उठाने की कोशिश करते हैं. पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद बच्चा, यानी 2 करोड़ 60 लाख के करीब बच्चा है जो स्कूल बहुत सारी वजूहात के बिना पर नहीं जा पा रहा है. अब तालीम बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर तालीम बच्चों को नहीं मिलेगी तो वो अपना मुस्तकबिल कैसे संवारेंगे. इसके साथ साथ जब हम मसाइल बताते हैं कि क्यों स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिनमें बड़ी तादाद लड़कियों की भी है, तो वो मसला है कि उनको जो ट्रांसपोर्टेशन की सहूलियात हैं वो मैसर नहीं है. यानी कि कई इलाकों में बच्चियां सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं जा पाती कि कौन उनको लेकर जाए, कैसे वो वापस आएंगी, रास्ते पुरखतर हैं, मुश्किलात हैं, सड़क नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है. सो ये सारे मसाइल कैसे हल होंगे. अब पेशावर में एक नौजवान है जिनका नाम है अरब शाह. उन्होंने गुज़िश्ता 10 साल से बच्चियों यानी लड़कियों को मुफ्त स्कूल छोड़ने का जो है ज़िम्मा उठाया हुआ है और घर वापस पहुंचाने की भी ज़िम्मेदारी वो अदा करते हैं. मकसद उसका क्या है? वो ये कहते हैं जी मैं चाहता हूं कि जो हमारे मुल्क की बच्चियां हैं, हमारे मुल्क की बेटियां हैं, वो तालीम से महरूम ना रह जाएं. और एक रिक्शे पर उन्होंने काम शुरू किया था और उसके बाद जितनी भी उनकी आमदनी होती है वो घर पर देते हैं और लेकिन इन बच्चियों को मुफ्त ये ट्रांसपोर्टेशन फराहम करते हैं. वालिदैन को भी उन पर मुकम्मल भरोसा है, 10 साल से वो ये काम कर रहे हैं. तो उनसे हम बात कर लेते हैं कि ज़ाहिर है पेट्रोल का ख़र्चा भी आता होगा, तो कैसे सारी सूरत हाल को मैनेज करते हैं. बहुत शुक्रिया आपका अरब शाह, आपने हमें ज्वाइन किया. पहले तो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी, इतनी मुश्किलात के बावजूद आपने ये आपके अंदर ये जज्बा जो है ये लायक तहसीन है. सबसे पहले मुझे बताइएगा ये ख्याल कैसे आया, बिकॉज़ ये बड़ी मुश्किल और ज़िम्मेदारी का काम है. वालिदैन का ट्रस्ट आप पर होना, ज़िम्मेदारियों से उन बच्चियों को स्कूल पहुंचाना, वापस उनके घर पहुंचाना, एक बड़े अपने आप में एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये शुरू कैसे किया, ख्याल कैसे आया? मेरी बहनें थे वो ट्रांसपोर्ट की वजह से स्कूल से मेरे रह गए थे, तो उस वक्त मेरा आइडिया आया जब मैं बड़ा जाऊँगा तो इंशाल्लाह मुफ्त ट्रांसपोर्ट शुरू करूँगा. हाँ. फिर मैंने BA किया और रिक्शा चलाना सीख लिया. फिर मैंने 10 साल पहले 2014 में मुफ्त पिक एंड ड्रॉप शुरू किया. तकरीबन उस वक्त गाँव के 5-6 बच्चे आते हैं तो उनसे मैंने आगाज़ किया और अब 10 साल हो गए कि मैं मुसलसल बच्चियों को मुफ्त पिक एंड ड्रॉप दे रहा हूँ. अच्छा, तो ये जो वालिदैन हैं इन बच्चियों के, इनका ट्रस्ट कैसे आप जीतते हैं, ट्रस्ट कैसे अर्न करते हैं? क्या शुरू में आपको मुश्किलात हुई इसमें? बिल्कुल, शुरू में बहुत मुश्किलात थे क्योंकि वालिदैन मुझे नहीं जानते थे. फिर उनके घर जाता था, फिर वो हमारे गाँव आते थे, मेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे कि ये लड़का कैसा है. और अब तो माशाल्लाह मैं बहुत फेमस हो गया हूँ, 10 साल हो गए. अब तो खुद और वालिदैन मेरे पास आ रहा है कि हमारे बच्चे ले जाए करो. अच्छा, तो आपके पास एक ही ऑटो है या बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं? किस तरह मैनेज करते हैं और अपना ख़र्चा कैसे निकालते हैं इससे?
मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं, वो मलयाली सजे के वालिद साहब ज़ियाउद्दीन साहब ने मुझे दिए हैं, और उनकी जो पेट्रोल का खर्चा है वो मुझे कोई भी नहीं दे रहा। इसके लिए हम ड्राइवर भी मजदूरी करते हैं, हम भी मजदूरी करते हैं, रात 11 बजे तक 12 बजे तक रिक्शा चलाते हैं, ड्राइवर सुजुकी चलाते हैं। जितनी भी पैसे कमाते हैं तो हम उन ट्रांसपोर्ट पर लगाते हैं, बच्चों पर लगाते हैं। अच्छा, और आप अर्न कैसे करते हैं? आप वैसे रिक्शा चला के अर्न करते हैं? मैं रिक्शा भी चलाता हूँ, वैन भी चलाता हूँ, दोनों में चलाता हूँ। अच्छा, तो ये बताएं, ये 10 साल हो गए हैं, तो वो बच्चे जो 10 साल पहले जिनको आपने इस तरीके से स्कूल भेजने के लिए अपनी काविश शुरू की थी, आज वो बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, क्या कहते हैं? आपको उन्होंने याद रखा हुआ, अप्रिशिएट करते हैं? बिल्कुल, जब मैंने सर्विस शुरू किया था तो उसमें तकरीबन 5 क्लास के, 6 क्लास 7 क्लास के भी बच्चे थे। अभी वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई, बाज़ी बच्चों ने तालीम मुकम्मल की, अभी वो प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रही है। तो बहुत दाद मिल रहे हैं बच्चों की तरफ से मुझे। अच्छा, और तो क्या आप समझते नहीं हैं कि जिन स्कूल्स में आप छोड़ते हैं, अगर वो आपको कोई एक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर दें या आपके साथ और लोगों को जोड़ लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे मामला? नहीं, वो तो सरकारी स्कूल है ना, वो तो खुद सरकारी मुलाजिम है, वो तो नहीं दे सकते, लेकिन हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं जो हमें एक बस दे। अगर उन्होंने मेरे साथ तावन किया तो मेरा पूरा यकीन है, अभी तो मेरे पास 200 बच्चे हैं, मैं इंशाल्लाह ये सर्विस पूरे खबर पख्तूनख्वा पिला दूंगा। ज़्यादातर जो तालिबात है ना वो ट्रांसपोर्ट की वजह से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि एक तालिबात से ट्रांसपोर्ट वाला 3000-4000 रुपये लेते हैं, और जिस घर में 3-4 लड़कियां होती है तो तकरीबन 10-12,000 15,000 बनते हैं। उनके वालिदैन भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मेरे पास जितनी भी तालिबात आ रही है और उनके पास ट्रांसपोर्ट की सहूलियत मौजूद नहीं है, लेकिन मैं उनको इनकार कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना वसाइल नहीं है। मेरे पास में जितना है मैं उतना करता हूँ। अच्छा, तो आपने क्या, बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो काफ़ी डिस्टेंस पर हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बच्चे बड़ा लंबा सफ़र करके स्कूल पहुँचते हैं, तो क्या आप उन्हें भी ट्रांसपोर्ट फराहम करते हैं? कितना डिस्टेंस कवर करते हैं आप? बिल्कुल, मेरे साथ बहुत लड़के तालिबात रब्ता कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर मेरे पास वसाइल आ गए तो मेरा पूरा यकीन है कि मैं उन बच्चों तक भी पहुंच जाऊंगा। अभी तो बहुत सारे बच्चे हैं जो घर में बैठे हुए हैं, मेरे पास आ रही है कि हमें भी स्कूल में दाखिल कराओ, हमें भी मुफ्त ट्रांसपोर्ट दे दो, तो हम स्कूल जाएंगे, लेकिन वो घर में बैठे हुए हैं, मेरे पास इतना वसाइल नहीं है। तो ये बताइएगा कि मुखैर हजरात जो हैं उन्होंने कभी आपकी इस हवाले से हेल्प करने की कोशिश की कि हम भी चाहते हैं कि इसमें कंट्रीब्यूट करें ताकि इस मुल्क के बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करें, बच्चियां तालीम हासिल करें, वो हेल्प करते हैं आपकी? नहीं, अभी तक तो एक आदमी ने मुझे रिश्का दिया था और मलयाली सब्जी ने मेरे साथ तावन किया, उन्होंने मुझे 4 गाड़ी के लिए पैसे भेजे थे, उन पर मैंने 4 गाड़ी ली। उसके अलावा मेरे साथ किसी ने रब्ता नहीं किया और न किसी ने पैसे दिए, न किसी NGO वाले ने पैसे दिए, न किसी ने फंड दिए। तो आगे कैसे आप इसको लेके कंटिन्यू करेंगे? क्या आपके प्लान्स हैं? क्योंकि महंगाई भी है, महंगाई का दौर है, आपके लिए ज़ाहिर है खुद गुजर बसर मुश्किल होगा, तो आप इसको मैनेज कैसे करेंगे? आपने कहा कि अगर सरकारी तौर पे हेल्प हो जाए, क्या राब्ता करेंगे आप सरकारी हुकूमत से, गवर्नमेंट से राब्ता करेंगे वहाँ? इंशाल्लाह ज़रूर मैं रब्ता करूँगा, लेकिन अब मेरे 10 साल हो गए, हुकूमत ने बिल्कुल मेरा पूछा भी नहीं है, न मेरे साथ रब्ता कर रहे हैं। अगर उन्होंने रब्ता किया तो मेरा पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह मैं ये जो सर्विस है पूरे पेशावर में पिला दूंगा, खैबर पख्तूनख्वा में पिला दूंगा, पूरे पाकिस्तान को पिला दूंगा। इंशाल्लाह एक सर्विस बनाऊंगा जिसमें जो गरीब तालिबात है उनको मुफ्त ट्रांसपोर्ट प्रोटेक्शन दूंगा। चलें, थैंक यू सो मच। अरब शाह हमारे साथ थे, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम करते हैं, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रहे हैं, ख़ासतौर पे बच्चियों को, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है स्कूल जाना क्योंकि रास्ते बड़े पुरखतर हैं और ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी नहीं है। तो हमने भी आज इन्हें इसलिए दावत दी अपने शो में ताकि जो गवर्नमेंट है वहाँ की वो एक्चुअली इस सारी सूरत हाल को देखे और अगर वो इनका हाथ थाम ले तो माशरे में बहुत कुछ बेहतरी आ सकती है। अच्छा जी, एक अपडेट है वो भी शेयर कर लेते हैं और वो ये है कि डी चौक एहतजाज के बाद प्रोपेगेंडे के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एतराज़ दूर करके दरख्वास्त 7 रोज़ में दोबारा लगाने की हिदायत सामने आई है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत की है और एतराज़ है। साथ ही जो सारी सूरत हाल के हवाले से डिटेल है वो हमारे सामने कुछ यूँ आ रही हैं कि एतराज़ है कि एतराज़ में दरख्वास्त गुजार हूँ और इस पर और उस इन पर्सन हूँ, ये वकील जो है
وہ یہ فرما رہے ہیں. اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے درخواست میں صدر, وزیر اعظم, وزراء کو ان پرسن بلایا ہوا ہے. چیف جسٹس نے یہ استفسار کیا. وزیر اعظم وزراء معاملے میں ملوث ہیں, اخبارات میں ثبوت موجود ہیں. جو وکیل ہے جو کہ درخواست گزار بھی ہیں, ان کی جانب سے جواب دیا گیا, ہم اخبارات کے تراشیوں کی بنیاد پر تو کسی کو ان پرسن نہیں بلا سکتے ہیں. چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا. اور میں یا آپ نے تحقیقات نہیں کرنی, اداروں کا کام ہے. آپ ریٹ کو پراپر بنائیں, یعنی کہ جو درخواست ہے اس میں جو اعتراضات لگائے گئے ہیں ان کو دور کریں, اس کے بعد ہی اس کو سنا جا سکتا ہے. اچھا جی, ایک اور اپڈیٹ ہے پی آئی اے سے متعلق. پی آئی اے نجکاری, آئی ایم ایف نے سیلز ٹیکس چھوٹ اور ایکویٹی لاسز ختم کرنے کا مطالبہ مان لیا ہے. اور ساتھ ہی جی خریدار کو تمام روٹس کے لیے طیارے خریدنے یا لیز پر لینے کے لیے سیلز ٹیکس چھوٹ ہوگی. ذرائع اس حوالے سے یہ بتا رہے ہیں سیلز ٹیکس چھوٹ نقصانات ختم ہونے سے بڈنگ 350 ارب روپے تک جا سکتی ہے. اور پی آئی اے کا 660 ارب روپے قرض حکومت نے بڈنگ کمپنی میں سٹاک کر دیا ہے, ہولڈنگ کمپنی میں سٹاک کر دیا ہے. نجکاری روزویلٹ ہوٹل فروخت سے ملنے والی رقم کو ادائیگی کے لیے یہ تمام تر معاملہ جی سیٹل کیا جائے گا. اور پی آئی اے جو ہے قرض کو سیٹل کرنے کے لیے بھی پی آئی ایم ایف کی منظوری اس میں دے دی گئی ہے. یہ ذرائع کے حوالے سے خبر آ رہی ہے. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس وقت جس ایشو کی طرف جا رہے ہیں, بہت دفعہ خبروں میں بھی آپ نے متعدد مرتبہ ایشو سنا ہوگا. کراچی میں بڑھتے حادثات ہوتے ہیں, دنیا بھر میں ہوتے ہیں, لیکن کراچی میں کیونکہ سڑکوں کا بڑا مسئلہ ہے, سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, اس کی وجہ سے بھی حادثات ہوتے ہیں. اور پھر جب ہیوی ٹریفک جس کا الگ ٹائم مختص ہے, جب وہ ٹریفک کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈمپر, وہ ٹرالر ایسے ٹائمز میں اسکول گوئنگ ٹائم پر دن دہاڑے ہمیں دندناتے سڑکوں پہ نظر آتے ہیں, تو پھر جب حادثات رپورٹ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے. اور پھر سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جی ان حادثات پر قابو پایا جا سکتا ہے بہتر مینجمنٹ سے. کرنگی میں ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر ماری جس پر خاتون بیٹھی تھی. خاتون کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا, 6 ماہ کا بچہ. وہ بچہ گر کے جاں بحق ہو جاتا ہے. پھر دکھی باپ جن کا نام عبدالحمید ہے, وہ کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے انہیں 13 سال بعد بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا, اور آج اس حادثے کی وجہ سے وہ اپنا بیٹا کھو بیٹھے ہیں. انہوں نے اپیل کی ہے حکمرانوں سے. اس اپیل میں وہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے دیکھیں. میرا بیٹا بڑی منتوں مناتوں سے دعاؤں سے اللہ پاک نے 13 سال بعد دیا تھا, وہ آج اللہ کو پیارا ہوا. گھر سے بچوں کی چیزیں لینے ہی نکلا. سڑک ہے ٹوٹی پھوٹی, مکینیکلوں نے گاڑیاں گھیری ہوئی ہیں, نرسری کی زیادہ اوور ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ سڑکیں کھلی ہوں, دوسرا ہیوی ٹریفک اپنے ٹائم ٹیبل سے آئے. میں چاہتا ہوں آپ یہ سڑکیں بنائیں, میری گزارش ہے, میری درخواست ہے ٹریفک پولیس والوں سے. ہیوی گاڑیوں کے اپنے ٹائم ٹیبل سے پہلے ہم نہ چھوڑیں. مکینک والوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنی گاڑیاں اپنی دکان کے آگے رکھیں, کتنا آنے جانے والے کے لیے گاڑیوں کی جانے کے لیے دشواری نہ ہو. کراچی شہر کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر کبھی مین ہول کھلے ہوتے ہیں, اس میں گر کے بچہ ڈوب کے مر جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ حادثات جب ہوتے ہیں, ہم جب ذمہ داروں سے پوچھتے ہیں کہ کس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, کوئی کسی پہ ذمہ داری ڈالتا ہے, کوئی کسی پہ ذمہ داری ڈالتا ہے, اون کوئی نہیں کرتا اس شہر میں ہونے والے نقصان کو. اور جب آپ نقصان کو اون نہیں کریں گے تو پھر آپ اس کے ازالے کے لیے بھی کچھ نہیں کریں گے. کراچی کا جو مسئلہ جس کی وجہ سے ٹریفک زیادہ تر حادثات ٹریفک کے ہوتے ہیں وہ ہے کراچی کی سڑکیں, تنگ سڑکیں, انکروچ ہوئی بھی سڑکیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, اور ان ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر یہ ہیوی ٹریفک ہمیں نظر آتا ہے. باوجود اس کے کہ ہم نے اپنے شو میں کئی بار یہ ایشو اٹھایا, پچھلے دنوں بھی, گزشتہ دنوں ہمارے شو میں آئے تھے جی کراچی پولیس چیف جاوید عالم موڈو صاحب. ان سے ہم نے درخواست کی تھی کہ بھائی یہ کیوں, جن کا ٹائم رات 11 بجے کے بعد ہے تو یہ دن 12 بجے ہمیں سڑکوں پر نظر کیوں آتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہیں پر کام ہو رہا ہے, تو ہم نے ایک خاص اجازت انہیں دی ہے کہ جہاں پر کام ہو رہا ہے وہاں پہ بجری لانی ہوتی ہے, سامان لانا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے اجازت دی ہوئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں. کیا کہہ رہے تھے پولیس چیف؟ کہتے ہیں جی ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ حادثات پہ قابو پائیں. سن لیتے ہیں. دیکھے ہوں گے کہ روڈز نئے بن رہے, ریپیئر اس وقت تو کھدائی ہو رہی ہے, وہی ہے, لیکن اس کے لیے بھی کھدائی کا بھی ڈیبری جو ہے اٹھانے کے لیے آپ کو ڈمپر چاہیے, اور اس کے بعد مٹیریل کو لانے کے لیے بھی آپ کو ڈمپر. پچھلے 1.5 مہینے سے جب ہم نے ریئلائز کیا کہ ان کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے خاص طور پہ فیٹل ایکسیڈنٹ میں,
हमने FIRs बढ़ा दी। पिछले 2 महीने में 7,000 ज्यादा हमने ड्राइवर्स को अरेस्ट किया है। अच्छा, जो कि आमतौर पे ट्रैफिक में हम नहीं करते। So, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की। आई होप कि ये जो बाप है जिसने दरख्वास्त की है, इसकी दरख्वास्त पहुँचेगी हुकाम तक और वो मज़ीद कुछ एक्शन लेंगे। बेहतरी से बहुत कुछ हो सकता है, इस तरह के हादसात से बचा जा सकता है, लेकिन उनका जो नुकसान हुआ है वो कहते हैं ना, जो जान चली जाती है वो वापस नहीं आ सकती है, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि हम आने वाले ऐसे वाक़यात को रोक सकते हैं इस तरह की कोशिश करके। कोहाट का यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी। कोहाट में कुर्रम की सूरत हाल पर ग्रैंड जिरगा आज दोबारा शुरू होगा और गुज़िश्ता रोज़ अमायदीन की अदम मौजूदगी पर ये जिरगा मुलतवी कर दिया गया था। अब इसी हवाले से जी हम देख रहे हैं कि जो जिरगा है उसका तयन होना है कि आज होना है कि नहीं, कल मुलतवी कर दिया था, जबकि बताया जा रहा है टल तपाड़ा चनार उत्तरी मंगल ताकोड़गरी और बुशहरा तसद्दा की सड़कें 69 रोज़ से बंद है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सूरत हाल यहाँ पर क्या है। चले जी, अब कोयटा से बता देते हैं आपको खबर। कोयटा में दर्जा हरारत -6 डिग्री तक गिर गया है और सुई सदन की 18 इंच कुतर की पाइपलाइन मुंजमद हो गई है। सर्दी की वजह से पाइपलाइन जो है मुंजमद हो गई है। अब तर्जुमान सुई सदन का कहना है कि कोयटा में नवाकली और मुल्का इलाके और पशीन और कचलाक बोस्तान और ज़ियारत में गैस की फरहमी मुतासिर है। टेक्निकल टीमें सुबह 6 बजे से मुतासरा पाइपलाइन पर काम कर रही हैं। तो सर्दी की वजह से सूरत हाल ये है। और अब्दुल्ला मक्सी हमारे साथ हैं, वो हमें डिटेल बताएंगे। अब्दुल्ला मक्सी, बताइएगा कुछ किया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से इस हवाले से? जी सतब इसी तरह है कि रात के औकात में यकीनन जिस तरह यकबख्ता हवाएं चली और यकबख्ता हवाओं के बायस जो सर्दी की शिदत में उसमें इजाफा रहा और रात को कुछ -6 सेंटीग्रेड तक सर्दी पहुंच गई थी, जिसके बायस सुई सदरन गैस कंपनी के हुकाम के मुताबिक 18 इंच जो गैस पाइपलाइन है वो मुतासिर हुई है, वो मुजम्मिद हो गई है। सर्दी की वजह से उसकी बहाली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। और मैं आपको साथ बताऊं कि जो गैस ये 18 इंच जो गैस पाइपलाइन है उससे मुतासिर होने से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ गैस की सप्लाई जो है मुतासिर हुई है, जिसमें कुचलाक पोस्तान ज़ियारत और दीगर इलाके हैं और कोयटा के भी चंद एक इलाके हैं जहाँ पे जो गैस है वो मुतासिर हुई है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि सर्दी की शिद्दत यकीनन आगे भी वक्ता जिस तरह हवाएं देख रहे हैं, हवाएं चल रही हैं और महकमा मौसमियात की भी यही पेशकरी है कि सर्दी की शिद्दत में मजीद भी इजाफा हो सकता है। और दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताऊं कि इस टाइम जो शहरी हैं कोयटा के, उनको एक प्रॉब्लम ये भी है कि गैस प्रेशर में कमी का मसला हमेशा रहता है। गैस प्रेशर में कमी, साथ में जब सर्दी जी शिद्दत से पाइपलाइन मुंजमद हो गई है। लेट्स सी कि काम, उसके मुरम्मत का काम कब तक मुकम्मल होगा। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। केपी से आपको ज़रा सूरत हाल थोड़ी सी यहाँ पर बता देते हैं कि 2021 में गालिबन 100 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाला आसान इंसाफ फरहमी का मंसूबा था, या मरकज़ जैसे कह लें, ये मंसूबा नाकाम हो गया है। और पेशावर में पुलिसिंग के अमल को बेहतर करने के लिए 5 पुलिस स्टेशन को मॉडल बनाया गया, जो कि अब सहूलत मराकज़ के नाम से सर्विसेज फराहम करेंगे। रिपोर्ट हमें करें अदनान तारिक के कहाँ से मामला शुरू हुआ और इस वक्त क्या सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में इस्लाहात लाने और पुलिसिंग के अमल में जिद्दत फराम करने वाला मेगा प्रोजेक्ट आसान इंसाफ मरकज सिर्फ नाम की हद तक रह गया। साल 2021 में 100 मिलियन रुपए के इस मंसूबे के पहले फेज में पेशावर के 5 पुलिस स्टेशन पर काम मुकम्मल किया गया, जिनमें पुलिस स्टेशन फकीराबाद, थाना टाउन, पुलिस स्टेशन हयाताबाद, बड़ाबेर और पुलिस स्टेशन चमकनी शामिल थे। आसान इंसाफ मराकज़ के इस मंसूबे में पेशावर के 5 पुलिस स्टेशन में साइलिन की मदद के लिए मददगार जवान, जदीद पुलिस मैनेजमेंट सिस्टम, जदीद ऑनलाइन सिस्टम अब गैर फाल हो चुके हैं। पे इन्वेस्ट किए थे आसान इंसाफ मरकज़। पहले जब लोग और शहरी आते थे ताने में तो मतलब सारा डिजिटल निज़ाम था। इनको चाहिए था कि इसको और भी वसी करते और थानों में, ये 5 थानों के अलावा और थानों को भी इसने वो किया, लेकिन वो निज़ाम इन्होंने ख़त्म कर दिया। गैर फाल आसान इंसाफ मराकज़ प्रोजेक्ट के बाद अब पेशावर पुलिस की जानिब से शहर में सहूलत मरकज़ के नाम से नई सर्विसेज के लिए नई इमारत तामीर की जा रही है।
आइडिया वो ठीक था, लेकिन प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट वो नहीं हो सका। अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारा अपना एक सहूलियत मरकज़, जिसमें 12-13 ऐसे सर्विसेज जो पुलिस प्रोवाइड करती है। पेशावर पुलिस के सहूलत मरकज में नई सहूलियात मुतारिफ करवाई जाएंगी, जो साल 2025 से अवाम के लिए अपनी सर्विसेज का आगाज करेगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़, पेशावर। तो इस्लाहात के नाम पर बहुत कुछ होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, ऑन पेपर्स रहते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। और ये सूरत हाल भी यहाँ पर हमारे सामने आई है। खबर एक और है, वो अपडेट में शामिल कर लेती हूँ, और वो है जी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी पेशी के लिए अडियाला जेल पहुँचेंगी। गुज़िश्ता समाअत पर बानी और बुशरा बीबी के 342 के बयान जमा करवाए गए थे। बानी PTI और अहलिया ने अपने दिफा में कोई भी गवाह पेश ना करने का कहा था। हतमी दलाइल मुकम्मल होने पर रेफरेंस में फैसला महफूज किया जाएगा। सो ये 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस है, जिस पर समाअत आज अडियाला जेल में होगी, और बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि बुशरा बीबी पेशी के लिए अडियाला जेल पहुंचेंगी। सो ये हमारे सामने इस वक्त सूरत हाल है। चलें जी, आपसे इजाज़त चाहने का वक्त आ गया है, और बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। ख़ास तौर पे जो हम देख रहे हैं इस वक्त पानी का बड़ा मसला कराची शहर में है, तो उसके लिए हमने कोशिश की थी जो CEO हैं वाटर कॉरपोरेशन के, उनसे बात करें तो 1334 नंबर है, इस पर आप वाटर टैंकर मंगवा सकते हैं। कंपैरेटिवली आपको वो पैसे उसमें कम पड़ेंगे। जो प्राइवेट आप मंगवाते हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन होपफुली मसला हल हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।